Very good morning, friends. Today we have the privilege of having with us CA Manas Chugji, who has been with us on earlier occasions also on various topics like financial analysis, liquidity management, and so on. Today we will be seeking his guidance on corporate finance and basic principles of economics. CA Manas Chugji has got deep knowledge of economics since he is an economics honors graduate from Delhi University and is a chartered accountant by profession. Earlier, he has been with Big Four and now he is into his own practice. So, with this, it is all over to CA Manas Chugji. Manasji, please. Thank you, Gupta ji, for this wonderful introduction. Also, good morning to all the participants. In the previous session that I have undertaken, we have understood the concepts of financial analysis, how exactly we have to analyze a financial statement through the ratio analysis. So we have understood many type of ratios. One can be like liquidity ratios, coverage ratio, activity-based ratios, and other different type of ratios of how we can analyze a financial statement, be it from the perspective of an investor point of view or a banker's point of view. So the financial analysis point of view can be like different. From the point of view of a banker, they generally see what is the debt equity ratio, how better their financial position is in basically recovering the principal plus interest amount. And from the perspective of an investor, we generally see the PE ratio, the price equity ratio, which defines what is the current market price of that the share in comparison to the earnings per share. Also, very different type of other kind of ratios like the liquidity management ratios, where we studied about the current ratios, quick ratios, and DSO. So definitely, Mahesh Pradeep ji, I'll be sharing the presentation of the last class as well. So it will be easy for you to refer that and understand the concepts of the ratios. Also the liquidity management, where we understood the concept of how the liquidity management is undertaken for be it the individuals, corporates, banks, as well as the government. For in the case of individuals, it is well said that like for us, we have to manage our liquidity through the cash inflows and the cash outflows. Likewise, in the case of corporates, we understood three ratios. And then for the banks, because bank is the main base through which the whole economy functions, therefore the RBI has been given the responsibility to regulate the banks. So RBI has different measures to regulate the bank's liquidity through many kind of ratios like repo rate, many kind of rates like repo rate, reverse repo rate, MSR, bank rate, and different type of CRR, SLR, and different kind of rates. And we also understood how it actually impact not only the banks but also the whole economy. So today we will be discussing about the economics part, that is the basics of the economy, because economy is such a subject that is so much diverse. The more you get in, the deeper it is. So because it is I will be only, if we have, because of the paucity of the time and because of the marks that it holds in the IBC examination, we will be only understanding the basics of the economics, what exactly is the economy and how it all functions and what all are the important prospects in the economics, so that it not only just give you a brief idea of how exactly is the economy function and how it is much relevance for each and every person, but also it is much relevance for the IBC exam. So I'll directly share the my PPT. So just like I told you, we will be only undertaking a brief of each and every like subject of the economics, because economics has so much diversification that be it like microeconomics or macroeconomics, each and every subject has so much deep concepts that it will take. Manasji, the topic is basic principles of economics as given in syllabus. Yes, So yes, let us give it some time on what are the basic principles of definitely. economics. There may be different principles based on different economists or something like that. Definitely. So I'll be briefing of each and every part, like what is exactly the basic principles and what can be a relevant portion for the IBC examination. So we will be starting with the economics, how economics is divided into two parts. First is the microeconomics, second is the macroeconomics. Microeconomics is
the behavior of individual decisions. For example, if a particular individual like us are making a decision, then it terms to be called as microeconomics. And if in case we summarize, we sum all the individual decisions, then we get to know about the macroeconomics. Microeconomics में हम वो समझते हैं कि अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं केचप लेने गया, टोमेटो केचप लेने गया, तो मेरा अगर मैं टोमेटो केचप ले रहा हूँ तो मेरा क्या डिसीजन होगा, मैं किस बेसिस पे वो टोमेटो केचप लूंगा, बीट प्राइसिंग, बीट क्वालिटी, तो मैं अपना इंडिविजुअल डिसीजन के बेसिस पे मैं क्या डिसाइड कर रहा हूँ, मेरे क्या फैक्टर्स हैं डिसाइड करने के लिए, दैट कम्स अंडर द माइक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ होल, इट इज, अगर हम पूरी इकोनॉमी की बात करें, अगर हम एज अ होल इकोनॉमी की अगर हम बात करें कि इंडिविजुअल पर्सन को हर एक हम सम कर दें, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है. दैट मीन्स कि अगर हम पूरी इकोनॉमी के अंदर हम कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हम बात करें, जैसे हम टोमेटो केचप की बात कर रहे हैं, तो हम क्या कंसिडरेशन हम लेंगे अगर हम कोई टोमेटो केचप को हम पूरे एज अ होल बाय करने के लिए. सो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द सेम, दैट इज द डिमांड एंड द सप्लाई. बट द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग डिसीजन है. जैसे फॉर एग्जांपल हम अपनी इकोनॉमी को डिवाइड कर रहे हैं, लाइक क्योंकि हमारी इकोनॉमी इतनी डाइवर्स है, तो अगर हम हाई इनकम क्लास, मिडिल इनकम एंड लोअर इनकम क्लास को डिवाइड करें, तो हर एक इनकम क्लास का अलग अलग पर्सपेक्टिव है कोई प्रोडक्ट बाय करने का. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, आफ्टर कोविड एवरीवन इज विलिंग टू बाय ऑटोमोबाइल, बिकॉज वो कहने के उनको चाहिए कि पर्सनल मोबिलिटी हो. तो सबका कोई लो इनकम और मिडिल इनकम क्लास है, दे विल प्रेफर कि वो मोटरसाइकिल ले. एंड फॉर एग्जांपल कोई मिडिल इनकम एंड हाई इनकम का क्लास का उनका प्रेफरेंस है कि वो कार परचेज करे. तो हर एक इंडिविजुअल का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है बाय करने का. बट अगर हम एज अ होल बात करें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कंसिडर होता है और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इंडिविजुअल डिसीजन. डिफरेंस इज the basically similarity is कि वो फंक्शन डिमांड एंड सप्लाई पे करता है, बट द डिफरेंस इज कि पर्सपेक्टिव अगर हम बात करें तो दोनों का बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्योंकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आफ्टर कोविड एंड आफ्टर क्राइसिस, नॉट बेसिकली आफ्टर कोविड बट आफ्टर क्राइसिस की जो सिचुएशन हो, ज्यादा अंडरस्टैंड करने की जरूरत होती है, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा, बिकॉज वी आर basically like professionals, so we just don't have to have only the technical skills of taxation or audit, but we also need to know about the economics part, what exactly is functioning in the economy, because it affects each and every corporate whichever we are basically doing the audit. So individual हर एक कंपनी का जिसका हम ऑडिट भी कर रहे हैं, तो उसका इकोनॉमी का कहने की पर्सपेक्टिव जोड़ा ही रहता है. जैसे कहने का अगर हमें फ्यूचर फोकस करना है किसी की, कोई भी कंपनी का, तो कहने की जब तक हम इकोनॉमी से रिलेट नहीं करेंगे वो, तो हम कहने की वो फोकस नहीं कर पाएंगे. सो देयरफॉर इकोनॉमी के अंदर देयर इज द होल इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो. सो द नेक्स्ट जो अल्टीमेटली, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहने की इतना मच रेलेवेंस नहीं होता, रेलेवेंस तो है बट इतना मच रेलेवेंस नहीं है अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल बेसिस, इंडिविजुअल के डिसीजन के बेसिस पे है. तभी हम जो जनरली सबसे ज्यादा जो डिस्कस करते हैं वो हमेशा मैक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं. रीजन बीइंग बिकॉज इट अफेक्ट्स नॉट ओनली अस बट द होल इकोनॉमी. बट नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, हाउ द टर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स came, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स केम फ्रॉम, देयर वाज अ फेमस British economist John Maynard Keynes. He was the person who basically provided majorly all the concepts of macroeconomics, because after जब 1930 के अंदर डिप्रेशन का फेज आया था in the whole world, then उसने जो जॉन मेयर्ड कीन्स ने जो कहीं ना कहीं इन्होंने थ्योरीज डिसाइड करी, थ्योरीज इन्होंने फॉर्म करी, दैट इज द बेसिक्स ऑफ होल मैक्रो इकोनॉमिक्स, वेयर आई विल जस्ट ब्रीफ इट. The major जो उन्होंने define किया था, at the individual level income determines the spending, and at the aggregate level spending determines the income. So he also pointed out about the paradox of saving, that is increase in the autonomous saving leads to a decrease in the aggregate demand and thus decrease in the gross output. So I'll just brief it in a minute. But what exactly he said, because 1930 के अंदर जब डिप्रेशन का फेज आया था in the whole world, so what exactly happened, everyone, जैसे अभी रिसेशन फेज के अंदर भी सेम हो रहा है कि everyone wanted to save their money, because कहने की जो future है it is uncertain, everyone, no one knows what will happen in the future, so everyone started to save money. अगर हम कहने की individual level पे savings start हो जाती है, so at the aggregate level
वो कहने के सेविंग्स इंक्रीज होके इतनी सेविंग्स बढ़ जाती है कि डिमांड की हमारी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सेव करेंगे तो हम कहने की कंजम्पशन हमारी कम हो जाएगी। अगर हम एग्रीगेट लेवल की बात करें तो हमारी कंजम्पशन अगर इकोनॉमी के अंदर कम हो गई तो एग्रीगेट डिमांड कम हुई, एग्रीगेट डिमांड कम हुई तो मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं दे विल बी प्रोड्यूसिंग लेस, leading to decrease in the gross output. So in this scenario, government is the only one who can intervene and who can revive the whole cycle. Because अगर हम इंडिविजुअल की बात करें, जब तक हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो हम कहीं ना कहीं स्पेंडिंग नहीं करेंगे। एंड इंडिया की कैसी, इंडिया जो इकोनॉमी है, इंडिया की इकोनॉमी फंक्शंस बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन। इंडिया का जो ग्रोथ, जो एवरीवन इज सीइंग द ग्रोथ ऑफ इंडिया इज बिकॉज ऑफ इट्स पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन है, दैट इज व्हाई एवरीवन इज टारगेटिंग इंडिया आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना के अंदर जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो जो पॉपुलेशन की जो कहने की इनकम स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है इंडिया से। बट इंडिया का बिकॉज इट इज सीन की जो मिडिल इनकम क्लास है दैट विल बी ग्रोइंग वेरी फास्ट। सो दैट इज व्हाई एवरीवन इज टारगेटिंग इंडिया टू मेक श्योर कि वो कहने के इंडिया की जो डेमोग्राफिक की जो एडवांटेज है वो कहने के उठा सके। दैट इज व्हाई सच काइंड ऑफ फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ लाइक डिप्रेशन और रिसेशन फेजेस, only the government has to intervene. That is why everyone is expecting from the government, from the finance ministry, that they have to increase in their expenditure, be it foregoing its revenue part or foregoing its fiscal deficits, to make sure that the whole economy comes back to the track. That is why last year 20 lakh crore का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भी आया. That was अभी भी every government is taking each and every measures. They are trying to make each and every measures so that the whole economy functions. So this was basically the concepts of macroeconomics. And just like I told you, the microeconomics and the macroeconomics both functions from the same point of view, that is demand and the supply. In the microeconomics case, it is the individual demand and the individual supply. But in the case of macroeconomics, it is aggregate demand and the aggregate supply. That means considering we have to sum the whole demand of each and every person who is planning to buy, for example, a ketchup. So अगर हम सारी उसकी डिमांड को ऐड करेंगे एंड सारी सप्लाई को ऐड करेंगे, देन वी गेट टू नो द प्राइसिंग एंड द क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल HUL की बात करें, HUL हाउ इट ऑल फंक्शंस, FMCG बेसिकली, FMCG सेक्टर जो फंक्शन कैसे करता है, इट फंक्शंस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्राइसिंग. कि अगर हम बात करें, अगर हम किसान की केचप लेना चाहते हैं या अगर हम मैगी की केचप लेना चाहते हैं, हम नहीं कंसिडर करते, बट कहने की लोअर मिडिल क्लास कहने की कंसिडर करती है कि प्राइसिंग क्या है, किसकी कितनी प्राइस है, किसका क्या टेस्ट है, वो कहने की उनका प्राइस का कंसिडरेशन बहुत ज्यादा होता है. देयरफॉर अगर फॉर एग्जांपल अगर टोमेटो का कहने का एक ऐसा क्रंच आ गया तो एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होगी. एग्रीगेट सप्लाई डिक्रीज होगी तो इट विल इंक्रीज द प्राइसिंग इवन इफ द डिमांड रिमेन्स द सेम. Therefore, FMCG sector ka only and majorly consideration is the pricing, and it is very much dependent upon the demand of us. कि अगर हमें लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ये ऐसे अभी हम आफ्टर कोविड हमें डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग हमारी बहुत कम होगी. अगर हमें जो लगता है कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो हमें अभी लगता है कि लग्जरी प्रोडक्ट्स हमें जरूरत नहीं है, वी आर नॉट परचेजिंग इट. सो देयरफॉर देयर एग्रीगेट डिमांड इज डिक्रीजिंग बट एग्रीगेट सप्लाई रिमेन्स द सेम. देयरफॉर कहने की उसकी प्राइस डिक्रीज होना चाहिए. बट जैसे कहने की जो नेसेसिटी प्रोडक्ट्स हैं या हाइजीनिक जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अगर हमने सैनिटाइजर का बहुत यूज हुआ या जो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज हुए जो कहने की न्यूट्रिशियस वैल्यूज उसकी ज्यादा थी, तो उनकी कहने की डिमांड एकदम से शूट अप हुई. जब जैसे कोविड का जब आया कि कोविड आ गया तो मास्क की जो डिमांड थी इतनी ज्यादा शूट अप हुई कि मास्क N95 वाज वो जो उसका प्राइस है दैट वाज स्केल्ड टू 200-250 रुपीज एंड नाउ इट हैज गॉन बैक टू 250 रुपीज. बिकॉज अब क्या हो गया, सप्लाई इतनी हो गई कि डिमांड को वो कवर कर पा रही है. सो देयरफॉर जो पूरा इकोनॉमिक्स का जो पर्सपेक्टिव होता है वो डिफाइन होता है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के ऊपर. ये मैं थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा बस इस चार्ट के ऊपर कि एज एंड व्हेन जो हमारा प्राइस लेवल अगर हम डिक्रीज करते हैं, अगर हम प्राइस लेवल हमारा डिक्रीज होता है तो हमारी क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज होगी. दैट मीन्स अगर मैं डिमांड की बात करता हूँ, अगर हम अपने इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, अगर हमें लगता है कि ये इस प्रोडक्ट का प्राइस गिर रहा है तो हम क्या करेंगे, ये जल्दी हम एक्यूमुलेट करेंगे कि अब तो प्रोडक्ट गिर रहा है तो परचेज कर लेते हैं. सो एज एंड व्हेन द प्राइस डिक्रीजेस द आउटपुट, दैट मीन्स द परचेजिंग प्राइस हम जब परचेज करेंगे वो हम इंक्रीज करेंगे. Likewise, opposite is the case of aggregate supply.
अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो कॉर्पोरेट के साइड से हम बात करें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के हिसाब से बात करें, तो प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करेंगे, वो अपना एग्रीगेट आउटपुट वो इंक्रीज करेंगे। रीजन बीइंग वो चाहेंगे कि वो मैं महंगा बेच सकता हूं, तो ऑब्वियसली मैं अपना जितना प्राइस मेरा बढ़ेगा उतना मैं अपना आउटपुट इंक्रीज करूंगा। देयरफॉर एग्रीगेट डिमांड का ये डिमांड का कर्व ये होता है, एग्रीगेट सप्लाई का ये होता है। एंड जहां पे इंटरसेक्शन होती है दैट डिफाइंस द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट। सो अगर हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करें, केचप की बात करें, तो इससे डिफाइंड होता है। अगर हम एज अ होल पूरी एफएमसीजी की बात करें तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। सो दिस इज द बेसिक्स एंड there are many other considerations while deciding the product, while deciding the pricing of the product, because of the, for example, in the case of COVID, the question that arises was the supply chain. The whole supply chain was disrupted. No, जो product की जो कहने की, क्योंकि लॉकडाउन की सिचुएशन ऐसी थी कि वो कहने की प्रोडक्ट पहुंच ही नहीं पा रहा था टू लोकल एरियाज, टू ऐसे एरियाज जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। देयरफॉर वहां पे क्या हुआ, सप्लाई कहने की डिक्रीज होनी शुरू हुई एंड वहां पे प्रोडक्ट इतने महंगे मिल रहे थे एंड ब्लैक में मिलना शुरू हो गए थे। एंड द बेस्ट एग्जांपल इज जो कोविड की जो सारी मेडिसिन थी वो सब कुछ एवरीवन इट वाज लाइक सेलिंग इन द ब्लैक, बिकॉज कहने की सप्लाई नहीं थी एंड डिमांड इतनी शूट अप हो गई थी इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मई। सो दिस इज ऑल हाउ द होल इकोनॉमी फंक्शंस। कहने की जो बेसिक्स है जो इकोनॉमी के अंदर जो इंपॉर्टेंट पार्ट होल्ड करता है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर हम इकोनॉमी को जज करना चाहते हैं, अगर हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि the government is claiming that we will be reaching to $5 trillion economy. So what exactly is $5 trillion economy and where exactly we are standing today? Currently we are standing at approximately $3 trillion and government is claiming कि हम next 3-4 years के अंदर, now they have increased their target कि हम $5 trillion economy में पहुंच जाएंगे। And where exactly is each and every like other countries, like China जो है, China is at around $10 trillion and $10 to $12 trillion and US is around $20-25 trillion. So हम कहने की जो गवर्नमेंट का टारगेट है, that what they are planning is they want to reach the India's economy to around $5 trillion and currently we are standing at around $3 trillion. But अब जो क्वेश्चन जो अराइज हुआ, जो हमने रिसेंट अभी लास्ट 1 ईयर के अंदर देखा कि जो हमारी जीडीपी वो एकदम से डाउनफॉल आ गया, अराउंड 20-30% का डाउनफॉल आया एंड नाउ धीरे धीरे करके the whole economy is reviving. So how exactly the GDP is calculated and what are the different ways what are the different perspective and how we have to analyze the economy of any economy. So the first concept is GDP. The GDP, the gross domestic product, is the total monetary or the market value of all finished goods and services produced within a country in a specific time period. कि अगर हम बात करें, आज की बात करें, तो हमारा जो भी मार्केट वैल्यू किस पे कंसिडर होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम क्वांटिटी एंड प्राइस को ईच एंड एवरी क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी गुड्स एंड सर्विसेज को अगर हम सम करते हैं, सो वी गेट टू एनालाइज द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें प्राइस की लेना है, क्वांटिटी क्या लेनी है। तो द मेजर पर्सपेक्टिव इज द प्राइस। प्राइस जो हमें लेना होता है दैट इज द मार्केट वैल्यू। अगर हम बात करें जो पूरा जीएसटी जो कहने की इवॉल्व हुआ है, जीएसटी इवॉल्व भी इसलिए हुआ है क्योंकि वो उसका इंडिविजुअल हर एक जो सप्लाई चेन के अंदर जो वैल्यू एडिशन है वो हम उसके ऊपर हम जीएसटी कैलकुलेट करते हैं। लाइकवाइज इन द जीडीपी के अंदर हमारे पास 2 मेथड हो जाते हैं, या तो हम हर वैल्यू एडिशन को ऐड करें या हम फाइनल प्रोडक्ट की पास अगर वैल्यू है उस फाइनल प्रोडक्ट की वैल्यू को, दैट इज द प्राइस को, हम मल्टीप्लाई करते हैं with the goods quantity plus the services जितनी हमने सर्विस दी है। So हम मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज को हम सम करते हैं तो वी गेट टू नो द जीडीपी। इन इंडिया जो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इट इज अराउंड $3 trillion एंड जो सर्विसेज है हमारी सर्विस इंडस्ट्री इन इंडिया, द सर्विस इंडस्ट्री होल्ड्स द मेजॉरिटी। अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग एंड अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विस इंडस्ट्री होल्ड्स अराउंड 50 to 55% ऑफ द कंट्रीज जीडीपी। सो दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट इज मेजरली फोकसिंग ऑन द बोथ द मैन्युफैक्चरिंग as well as the service part, because जो कहने की सर्विस इंडस्ट्री से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग में ज्यादा फोकस इसलिए रहता है बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव जॉब है। सर्विस इंडस्ट्री के अंदर इट इज मोर ऑफ अ टेक्निकल स्किल्स, या जो कहने की वैल्यू एडिशन दे रहे हैं वो हम कहने की टेक्निकल स्किल्स की वजह से दे रहे हैं। तो देयरफॉर सर्विस इंडस्ट्री इज ग्रोइंग फास्टर बिकॉज इन इंडिया
the technical skills of persons are increasing, but वो जो हम कहने की लेबर की बात कर रहे हैं, because हमारी population इतनी ज्यादा है, that is why government का जो major focus रहता है वो मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया, वो इसलिए रहता है क्योंकि सारी लेबर इंटेंसिव वाली जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेटेड रहे. So GDP is the way how we have to analyze a country's इकोनॉमिक स्ट्रेंथ. हमने वैसे पहले फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझा, इकोनॉमी की अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो जीडीपी इज द वे. एंड नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जीडीपी. अगर हम जैसे हमने बात करी थी इसके अंदर कि हम जो लेते हैं वो हम लेते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज. सो जो क्वेश्चन जो अराइज होता है, हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी. हम हर एक जो प्रोडक्ट है, ईच एंड एवरी प्रोडक्ट का प्राइस और हम क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसको सम करते हैं, वी गेट टू अंडरस्टैंड द जीडीपी. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि प्राइस जो हमें लेना है, क्योंकि क्वांटिटी तो हमारा फिक्स्ड है कि हमारा इस साल कितना प्रोड्यूस हुआ है वो हमारी क्वांटिटी है, बट जो हम प्राइस की बात करते हैं, प्राइस कैन बी डिफरेंट. प्राइस क्या होता है, प्राइस का जजमेंट हो सकता है हम प्राइस कौन सा लेना है, या तो हम प्राइस आज का ले सकते हैं या हम प्राइस बेस ईयर का ले सकते हैं. वो हम विल बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस टॉपिक. There are two perspectives in the GDP. First is the nominal GDP. Second is the real GDP. Nominal GDP means we have to understand, we have to take into the consideration price of today. That is, अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 21-22 को अगर हम जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं फर्स्ट क्वार्टर की, तो क्वांटिटी जितनी प्रोड्यूस हुई है इन द फर्स्ट क्वार्टर बोलेंगे इनटू द प्राइस. प्राइस मतलब जो हमारे आज का जो प्राइस है वो हम कंसिडर करेंगे while calculating the GDP. नेक्स्ट इज द रियल जीडीपी. रियल जीडीपी के अंदर जो हम प्राइस लेते हैं वो हम प्राइस लेते हैं 2011-12 का. दैट मींस तो जो 2011-12 के अंदर उस प्रोडक्ट का जो प्राइस था वो हम प्राइस लेंगे इनटू द क्वांटिटी. क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, रीजन बीइंग जो भी प्रोड्यूस हुआ है उस स्पेसिफिक पीरियड में वो हम लेंगे, बट जो हम प्राइस लेते हैं प्राइस कैन बी डिफरेंट. नॉमिनल जीडीपी के अंदर वील बी टेकिंग द टुडेस प्राइस, रियल जीडीपी के अंदर वील बी टेकिंग द प्राइस ऑफ 2011 and 12. So now the question arises, it is the question I want everyone to answer in the chat box, कि अगर हम बात करें 2011-12 फॉर एग्जांपल 2021-22 की एंड 2020-21 की, अगर हम इन दोनों की जीडीपी को अगर हमें कहीं ना कहीं एनालाइज करना है कि हमने कितना ग्रो किया है, सो व्हाट विल बी द बेटर वे ऑफ मेजरिंग इट, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी. आई विल रिपीट माय क्वेश्चन अगेन. इफ आई वांट टू compare the India's GDP of 2021-22 and 2021 and 21-22, तो मैं कौन सा वे यूज करूंगा, नॉमिनल जीडीपी यूज करूंगा या रियल जीडीपी यूज करूंगा कंपैरिजन करने के लिए. I want everyone to answer and I would request everyone to answer in the private so that easy for each and every participant. सर रियल जीडीपी के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे. ठीक है जी, मैं अभी उसका आंसर भी करूंगा आफ्टर एवरीवन इज हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन. So most of the answers are right. That is the real GDP because कहीं ना कहीं हम real GDP इसलिए यूज करेंगे क्योंकि जो प्राइस है वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट प्राइस है. क्वांटिटी में जितना इंक्रीज हो रहा है, अल्टीमेटली हम ये क्वांटिटी में जितना इंक्रीज हो रहा है उससे हमें पता चलता है कि हमारा आउटपुट कितना इंक्रीज हो रहा है एक इकोनॉमी के अंदर. प्राइस हमारा सेम है, जितना हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है उससे हम बेटर एनालाइज कर सकते हैं कि कितनी जो इकोनॉमी है, कितनी इकोनॉमी के अंदर आउटपुट, कितना मैन्युफैक्चरिंग है, कितनी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वो कितना आउटपुट कितना इंक्रीज हुआ, बीइंग द प्राइस रिमेन्स द सेम. अगर हम नॉमिनल जीडीपी कंपेयर करते हैं तब इशू क्या आता कि हमारा 2021 के अंदर जो प्राइस था और 21-22 के अंदर जो प्राइस है वो डिफरेंट है, क्योंकि वो हमारी जो इकोनॉमी इट्स अ डेवलपिंग इकोनॉमी, तो कहने की डिमांड सप्लाई इतनी ज्यादा में कहने की फ्लक्चुएट आता है, तो हमारा इन्फ्लेशन हमेशा नंबर हाई रहता है. तो इन्फ्लेशन की वजह से
हमारा जो 2021 के अंदर जो प्राइसिंग थी एंड 21-22 के अंदर जो प्राइसिंग है वो कहीं ना कहीं बहुत चेंजेस होंगे बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। बट हमें कहीं ना कहीं कंपैरिजन करना है, तो हम क्या करेंगे, हम खाली प्राइसिंग सेम रख के क्वांटिटी, दैट मींस आउटपुट में कितना इंक्रीज आ रहा है, वो हम मेजर लेंगे टू कंपेयर द जीडीपी ऑफ अ कंट्री। दैट इज व्हाई अगर हम बात करें, अगर जो हम जो द गवर्नमेंट आल्सो गिव्स द फिगर्स, their major focus is on the real GDP, because real GDP plus inflation की बात करें तो nominal GDP आता है। I believe the concept is clear to all of what exactly is the way we calculate the GDP numbers. So there are many ways to calculate the GDP. That is, I won't be going much into the details. That is the GNP. Before understanding the ways to calculate the GDP, we will be understanding what exactly is the difference between GNP and GDP, gross national product and gross domestic product. There is a very slight difference between the two, and it also arises many confusion. GNP and GDP में फर्क क्या है? GDP का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो within a country's border, it measures the value of all goods and services produced within a country's border regardless of the nationality. That means जो भी इंडिया की बॉर्डर, इंडिया का जो लैंड है, इंडिया का जो लैंड है, उसमें एवरीथिंग वट एवर इट इज प्रोड्यूस्ड एंड वट एवर द सर्विसेज आर रेंडर्ड, दैट इज कंसिडर्ड टू बी पार्ट ऑफ द जीडीपी। बट जीएनपी में क्या है? इन द केस ऑफ जीएनपी, it measures the value of goods and services produced by only a country's citizen. That means, for example, अगर हम Reliance की बात करें, Reliance, whatever the Reliance is producing, be it in India or be it anywhere outside the world, जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो हम जीएनपी के अंदर कंसिडर करेंगे। एंड फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई अरामको की, अरामको दैट इज जो सऊदी कंपनी है, वो वहां की कंपनी है, वो इसके अंदर एक इंडिया में फॉर एग्जांपल उनका एक कहीं ना कहीं एक वहां पे इंडिया के अंदर भी एक्सप्लोरेशन करते हैं वो ऑयल की। तो जो हम जीएनपी की बात करें, जीएनपी के अंदर हम इंडिया में वो जो एक्सप्लोरेशन में जो इनकम कमा रहे हैं वो हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ओनली वी विल बी इंक्लूडिंग जो इंडिया के जो कंट्री के सिटीजन है, जो वट एवर दे आर प्रोड्यूसिंग विल बी यूजिंग, वी विल बी उसका जो हम सम करेंगे तो जीएनपी आता है। एंड जीडीपी का मतलब क्या है कि जो एमएनसीज इन इंडिया जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, एमएनसी इन इंडिया जो सर्विसेज रेंडर कर रही है, प्लस डोमेस्टिक कंपनी जो इंडिया में सर्विसेज रेंडर या गुड्स पर सेल कर रही है, उन सबको हम ऐड करते हैं तो जीडीपी का नंबर आता है। सो द डिफरेंस बिटवीन द टू इज, in the case of GNP, we only take into the consideration the earnings of the country's citizen. India के जो citizen है, whatever they are producing, whatever the services they are rendering, we have to sum it. But in the case of GDP, we take into the consideration only whatever that is produced within the country's border. That is, India के अंदर जो भी produce और services render हो रही है, वो हम GDP के अंदर calculate कर रहे हैं. That is, for example, अगर हम accounting services render करते हैं as a professional, मैं एक इंडियन कंपनी हूं, मैं अकाउंटिंग सर्विसेज रेंडर कर रहा हूं, तो यहां से मैंने जो सर्विसेज रेंडर कर रही है वो अल्टीमेटली मैं जीडीपी के अंदर कैलकुलेट करूंगा। बट फॉर एग्जांपल एक फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया के अंदर बैठ के वो अकाउंटिंग सर्विसेज रेंडर कर रही है, तो वो मेरी जीएनपी के, वो बेसिकली मेरी जीडीपी में तो आएगी, बट वो मेरी जीएनपी में नहीं आएगी, क्योंकि जीएनपी में मैं खाली इंडियन कंपनीज, इंडियन रेजिडेंट्स वो ही कंसिडर करता हूँ कैलकुलेट करने के लिए। So GDP is a better measure to understand a country. Therefore GNP के जो numbers है वो कहीं ना कहीं public domain में इतने discuss भी नहीं होते हैं. Only the GDP numbers are discussed much into details by the government officials. So GNP minus GDP is equal to factor payments from abroad minus the factor payments to abroad. Basically the difference between the two is. So I believe the concept of GNP and GDP is clear. If in case anyone has any query till now, they can ask in the chat box. So the next part जो क्वेश्चन जो अराइज होता है वो ये होता है कि जीडीपी जो हमने अंडरस्टैंड किया, एक होता है फैक्टर कॉस्ट के थ्रू हम मल्टीप्लाई करते हैं, एक होता है मार्केट प्राइस के थ्रू। जैसे हमने अंडरस्टैंड किया था जीडीपी जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज प्राइस इनटू द क्वांटिटी। सो व्हाट एग्जैक्टली इज द प्राइस? प्राइस हमने पहले पर्सपेक्टिव समझा कि हम प्राइस आज का लें या हम बेस ईयर का प्राइस ले। अब नाउ द क्वेश्चन राइजेस, फॉर एग्जांपल मैंने आज का प्राइस लिया,
तो मैं प्राइस कौन सा प्राइस लूं, मार्केट प्राइस लूं या फैक्टर कॉस्ट, दैट इज जो जिस पे वो प्रोड्यूस हुआ है वो प्राइस लूं. Therefore, there is a difference between the two, GDP at factor cost and GDP at market price. एंड जो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन जो हम करते हैं, जो कहीं ना कहीं जो वाइड नंबर्स जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स देते हैं, दैट इज ऑन द मार्केट प्राइस. बिकॉज फैक्टर कॉस्ट के अंदर कहीं ना कहीं जो इतनी वैल्यू एडिशन हुई है हर एक स्टेप में, वो कहीं ना कहीं कंसिडर ही नहीं हुई. देयरफॉर द मार्केट प्राइस इज ऑलवेज कंसिडर्ड, बट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस के डिफरेंस एवरीवन मस्ट शुड बी अवेयर ऑफ. मार्केट कॉस्ट डिराइव्ड आफ्टर मार्केट प्राइस जो हम जो कंसिडर करते हैं वो हम इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस द फैक्टर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हम ऐड करके आरआईएस करते हैं. दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस द सब्सिडीज. सब्सिडीज हम वो कंसिडर करते हैं जो डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है कि जो प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस को कम करने के लिए. फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ऐसे बहुत सारी सब्सिडीज देती है जो जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन या ऐसे बहुत सब्सिडाइज्ड एरियाज है जहां मार्केट प्राइस फिक्स कर दिया है गवर्नमेंट ने कि इतने से ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते हैं. तो उसके ऊपर अगर उसके लिए गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करती है तो हम सब्सिडीज को माइनस करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग द जीडीपी एट मार्केट प्राइस. सो जीडीपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस द इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस द सब्सिडीज. नेक्स्ट जो टॉपिक जो द टॉपिक ऑफ the topic is the GDP deflator. GDP deflator का जो फॉर्मूला is nominal GDP divided by the real GDP. जैसे अभी हम nominal GDP मैंने पढ़ा था, that considers the market price of today, and the real GDP considers the market price of the base year. Therefore, the difference, the GDP deflator is nominal GDP divided by the real GDP, and this is basically a measure of the inflation. क्योंकि इसमें quantity कहीं ना कहीं same है, only the price remains the difference. Therefore, it is a measure of the inflation of a economy. And there are many ways of calculating the GDP by first the expenditure method and the income method. क्या अगर हम सारे expenditure का summation करते हैं या सब कुछ सारा income को summation करते हैं तो both the summation will be the same. I won't be much going into the detail. और इसके नेशनल इनकम की जो कैलकुलेशन होती है इट कैन बी थ्रू इनकम मेथड कि हमने सारा इनकम ऐड कर दिया तो दैट कम्स टू द नेशनल इनकम. लाइकवाइज इन द केस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड अगर हम सारी एक्सपेंडिचर ऐड कर ली, चाहे हम सारी इनकम ऐड करें सारी एक्सपेंडिचर ऐड करें, कहीं ना कहीं वो एक वो डेबिट क्रेडिट साइड होता है. लाइकवाइज इनकम और एक्सपेंडिचर साइड है कि दोनों का हम ऐड करते हैं तो कॉन्सेप्ट करने का बैलेंस करता है और सेम ही आंसर आता है. I'll just go a little bit into this details कि अगर हम जो हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो नेशनल इनकम को जो बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो है ये है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स. अगर हम कोई भी हम नेशनल इनकम अगर हम एक इकोनॉमी की फॉर एग्जांपल इंडिया की कैलकुलेट करना चाहते हैं तो व्हाट वी हैव टू सी हाउ वी हैव टू कैलकुलेट. वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट सम द कंजम्पशन ऑफ दैट इकोनॉमी प्लस द इन्वेस्टमेंट बाय basically the corporates plus the government spendings plus the net exports. India की economy as I told you is on majorly on the consumption basis. कि हमारी जो economy है वो पूरी जो function ही consumption के basis पे होती है. हमारी economy का जो major perspective ही consumption है. तभी जो recession कहीं ना कहीं हमारा outlook, क्योंकि economy how the whole economy function, it functions on the basis of the outlook. कहने की जैसे हम फोर्सी करते हैं कि एक कहने की रिसेशन फेज आने वाला है तो व्हाट एवरीवन फील्स कि वो कहने की सेविंग्स इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं, कंजम्पशन कम करना शुरू कर देते हैं. सो अगर हम इंडिविजुअल की बात करें तो मेरी अगर सेविंग्स इंक्रीज होने शुरू हो गई, कंजम्पशन कम होने स्टार्ट हो गई तो मेरी इकोनॉमी के अंदर कम इम्पैक्ट होगा. बट जैसे मैं सम करना शुरू कर दूंगा, ईच एंड एवरी पर्सन का मैं ऐड करूंगा तो एज अ होल इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा. देयरफॉर गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट तभी हमेशा इंटरवीन करती है नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फाइनेंशियल्स कि वो पैसे डाले, बट आल्सो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द आउटलुक कि वो आउटलुक लोगों का चेंज करती है. वो जैसे ईच एंड एवरी गवर्नमेंट इज आल्सो गुड इन द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव कि वो क्या पोर्ट्रे करती है कि हम ऐसे $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे. ये बिकॉज इट एवरीवन फील्स कि हमारी इकोनॉमी इतनी बड़ी होने वाली है, एवरीवन विल बी डूइंग एक्सपेंडिचर, एवरीवन विल बी गोइंग फॉर द कंजम्पशन बिकॉज एवरीवन विल हैव दैट आउटलुक कि हम कहने के एक बहुत ग्रोइंग इकोनॉमी है. अगर हम पूरी एज होल इकोनॉमी की बात करें, अगर ईच एंड एवरी पर्सन का कंजम्पशन एकदम से कम होना शुरू हो गया, जैसे रिसेशन फेज तभी आता है जब कहीं ना कहीं आउटलुक लोगों का चेंज हो जाता है. उनको लगता है कि ये कहीं ना कहीं अनसर्टन फेज आने वाला है.
So everyone starts to do the savings rather than going for the consumption, which hampers the whole economy. Therefore, government or ये सारे जो public government authorities हैं, they come into the media to portray that the whole economy is functioning well. They do start undertaking the marketing activity that they actually foresee कि वो बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी एक बहुत बूस्ट फेज में आएगी, to make sure कि कंजम्पशन साइकिल कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कंजम्पशन साइकिल इम्पैक्ट हो गई इंडिया की इकोनॉमी के अंदर तो इट विल इम्पैक्ट द होल इकोसिस्टम. जो अभी हमने जो अंडरस्टैंड किया था, there are three methods of calculating the GDP. First is the income method, second is the expenditure method, third is the value added method. Value added method का concept क्या होता है कि हम इंडिविजुअल हर एक वैल्यू एडिशन पे अगर हम ऐड करना शुरू कर दें, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से अगर कुछ जो वैल्यू एडिशन हो रही है उसको हम ऐड करेंगे, सम ऑफ ऑल वैल्यू एडेड एट ऑल द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, दैट कम्स टू द वैल्यू एडेड मेथड. Next question arises is gross investment and the net investment. What exactly is the gross investment? Gross investment is a total addition made to the capital stock of the economy in a given period as termed as a gross investment. Net investment के अंदर हम कहने की depreciation deduct कर देते हैं तो हम net investment के अंदर आते हैं. Net investment is the gross investment minus the depreciation. So the next concept is the disposable income. So I'll be taking on only the basics of the economy or the terminologies that are used while we have to analyze an economy. And the next concept is the disposable income. Disposable income is called as disposable income is the amount of money that the households have available for spending and saving after the income taxes have been accounted for. That means जो भी हमारे पास इसका जो formula है, that is personal income minus the personal income tax. कि हम हर एक, मैं पर्सनल की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ. अगर इंडिविजुअल की जो आफ्टर इनकम टैक्स जो पैसे बचते हैं, चाहे वो स्पेंडिंग के पर्पस के लिए हो, सेविंग के लिए पर्पस के लिए हो, दैट इज कॉल्ड एज डिस्पोजेबल इनकम. इफ इन केस एनीवन हैज एनी क्वेरी टिल नाउ, दे कैन आस्क इन द चैट बॉक्स. So disposable income minus all the payments of the necessities, that is mortgage, health insurance, food, transportation, equals the discretionary income. So the question that arose especially after the coronavirus was, एक तो discretionary income तो खत्म हो ही रही थी, discretionary expenditure भी कम हो रहा था, because there were many job losses and there wasn't much increment, as well as there wasn't any much promotions. Therefore, the discretionary income was also decreasing, and as well as discretionary expenditure likewise was also decreasing. क्योंकि अगर कहने का हमारा income decrease होगी तो हमारे कहने के ऐसे expenditure भी कम होंगे जो necessary में हम consider नहीं करते हैं. Now the next part जो हम concept लेंगे, that is the leading indicators and the lagging indicators. Okay, I'll explain it through the practical example. Last year March के अंदर when in India the government announced that there was the first coronavirus case, the whole market fell by around 1,000 to 1,500 points on a single day. उस दिन जिस दिन first coronavirus case आया, उस दिन ही 1,000 to 1,500 points market गिर गई. What it shows, market गिरना इसका मतलब क्या हुआ? It was a leading indicator. That means it portrayed कि अब जैसे पहला केस आ गया, it portrayed कि अब इंडिया के अंदर केसेस बढ़ने शुरू होंगे and the whole economy there will be a downfall in the whole economy. That means that was a leading indicator. It portrayed in the predictive, it was a prediction कि वो first day जिस दिन पहला केस आया उस दिन ही prediction कर दिया कि पूरी इकोनॉमी के अंदर डाउनफॉल आएगा. So leading indicators are the indicators which are a predictive measurement and which portrays at the initial stage itself what will be the impact of that particular event in the whole economy. Lagging indicators are the indicators जब वो पूरा event हो जाता है, that means वो कोरोना वायरस का वो 3 महीने का पूरा पीरियड निकल गया, 3-4 महीने का, जब everyone started to realize कि it will impact the whole economy, there will be a recession phase in the economy. So तब क्या increase हुआ? Job losses increase होने start हो गए. So there was an increase in the unemployment rate. That was a lagging indicators. That means after the whole event was occurred,
there was some indicators, then there was some events that indicated that there will be that the impact in the economy. So leading indicators are the predictive measurement. Lagging indicators is an output measurement that tends to have a delayed reaction to a change in the economic cycle. So leading indicators means stock market, जैसे हमने बताया कि stock market के अंदर on the first day itself the stock market fell. Manufacturing activity, inventory levels, for example, क्योंकि जैसे ही कोरोना वायरस का केस आया, the government after 10-15 days announced like after 15-20 days announced the complete lockdown. And what eventually it happened, जो manufacturing activity कहीं ना कहीं conduct तो हो ही रही थी, and it led to an increase in the inventory. Ultimately sale नहीं हो पा रही, inventory increase हो रही है. So inventory level जो उसी वक्त जो हम बात करें on the date of the lockdown ही inventory level इतना increase हो गया, so that portrays it was a leading indicator. Lagging indicators are output measurement की वो बाद में पता चलता है, जैसे income and wages बाद में कम होनी start हुई, जब everyone realized, the corporate realized that it will impact the whole functioning of their company and there will be decrease in their income. So उनने wages कम करने शुरू हुए. It also led to increase in the unemployment rate, and also the CPI index also impacted. So basically leading and lagging indicators का basic objective ये होता है, leading पहले से indicate करता था, lagging बाद में indicate करता है. So now we will be undertaking few questions, so that because जब तक हम questions undertake नहीं करेंगे तो concepts की clarity नहीं आएगी. So first question is economic survey is first question is this: economic survey is published by the Ministry of Finance, the Planning Commission, Government of India, or Indian Statistical Institute. I want everyone to answer in the chat box, and that too in the private message. Economic survey conduct करता है. I'm receiving mixed answers. Some are saying Planning Commission, some are saying Ministry of Finance, some are saying Indian Statistical Institute, some are saying NSSO. So the answer for this is A, Ministry of Finance. Most of the answers that I received was Planning Commission. Let me show that. Most of the answers that I received was Planning Commission, but the answer for this is A. जो हम जो economic survey की बात करते हैं, when does the economic survey happens? It happens a day before the budget exercise. जिस दिन budget आता है उससे एक दिन पहले economic survey आता है. तो जो economic survey आता है, that is by the Ministry of Finance, their Department of Economic Affairs. जो इनके Department of Economic Affairs है, Department of Economic Affairs of the Ministry of Finance. Ministry of Finance का department है, Department of Economic Affairs, that gives the economic survey of India, rather than the Planning Commission, that is the Niti Aayog or the Indian Statistical Institute or NSSO. ये नहीं देते, only the basically the Ministry of Finance with the Department of Economic Affairs publish the economic survey of India. Now I want everyone to answer this question number 2. What exactly is the mixed economy? Mixed economy क्या होता है?
Most of the answers are coming right. I want everyone to participate. Yes, the answer is B. There is a coexistence of public sector along with the private sector. So in India is basically a mixed economy where the public sector as well as the private sector coexist. Now the next question. Question number 3. What is gilt-edged market? I'm receiving two answers, A and B, bullion market and market of government securities. And yes, most of the answers are right. That is B, the market of the government securities. जो हमने लास्ट क्लास सेशन में अंडरस्टैंड किया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो परचेज एंड सेल होता है. हाँ, आई वांट टू आस्क एवरीवन वन क्वेश्चन. जो आरबीआई अंडरटेक करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का परचेज एंड सेल, व्हाट एग्जैक्टली इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ दैट? जो आरबीआई अंडरटेक करती है परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी ऑफ दैट? That we understood in the last session. जो RBI, yes, I've started receiving the right answer. I received only two answers, I believe, like 3 answers now. No, not bank rate. Bank rate is the rate at which the bank borrows from the RBI on the long-term basis. The answer is open market operations. We have understood that concept in the last session. Open market operation is the operation by the RBI in which the RBI in the secondary market buys, purchases and sells the government securities. तो जो मार्केट है उस मार्केट को हम कहते हैं मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कहते हैं गिल्ट एज मार्केट. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फाइनेंशियल इंक्लूजन एज पर आरबीआई मींस. Financial inclusion as per RBI means some are saying C, some are saying D. So the correct answer for this question is D. That is all of the above. Not only the financial literacy, the financial inclusion also includes the greater consumer protection for newly included consumers, as well as an easily accessed and speedy grievances redressal of all the processes. So for question number 4, the answer is D. I'll also take like 3-4 more questions. Give me a moment. Four more questions, then we will understand the concept of corporate finance. So question number 1, what is the base year in calculating the real GDP? Yes, most of the answer is right. That is C, 2011-12. For question number 1, the answer is C, 2011-12.
Now question number 2, which of the following is not a method to calculate the GDP? Product method, income method, expenditure method, and diminishing cost method. Question number 2. I'm receiving 2 answers, A and D. The correct answer is D. Product method is also called as value added method, income method, and expenditure method. Both these three are the ways how we calculate the GDP. Diminishing method, there isn't any diminishing cost method to calculate the GDP. Now question number 3. The total amount of income from economic activities across the country in a year is called as. Yes, more or less everyone is saying the right answer. No, I'm receiving 2 answers now, A and B. The correct answer for question number 3 is national income. Because I told you, there are 3 ways to calculate the national income. One is the product, one is the income, and the last is the expenditure method. So if we add all the total amount of income in an economy, then we get to know the national income of that economy. Now, the last we will be taking is question number 4. Which of the following statements is correct? GDP at factor cost. The formula of GDP at factor cost is question number 4. I'm receiving mixed answer for this part. I'll first take you to that concept. GDP at factor cost and market price. What is the difference? GDP at factor cost हम consider करते हैं, वो हम जो cost of production है वो consider करते हैं. Market price के अंदर हम add करते हैं indirect taxes. Add the indirect taxes minus the subsidies. So GDP at factor cost, GDP at market price is equal to GDP at factor cost plus the indirect taxes minus the subsidies. So I want everyone to answer it again. GDP at factor cost is equal to. Also, I'll also take this to another concept. Maybe you might be confused in the, wait for a second. Give me a moment. Just give me a moment. I'll discuss this answer in the last because I'm not able to find that concept in my PPT. I'll discuss this question in the last after the completion of the whole session. So the next topic of discussion for us for today
is the corporate finance. We have already understood the concept of liquidity management and the financial analysis. So now we will be understanding the corporate finance. So in the last session, we discussed about how we have to analyze a company. What are the ways we can through the ratio analysis? How the ultimately from the perspective of the management or from the perspective of the company, how well they have to use their finances. For example, if they are planning to purchase a machinery, or they are planning to procure, or they are planning for a new plant and machinery or a land and building, how they have to fund that. If they can be funded through their own funds, or they have to borrow some funds, or they can also raise some more equity or preference shares. So there are very different ways how a corporate functions and how they manage their finances. So ultimately, what exactly is the corporate finance? The concept of corporate finance is concerned with the efficient and effective management of the finances of an organization. How better that corporate is able to manage its finances. It can be two ways. If, for example, that corporate has sufficient funds, so how better they can utilize that fund by investing into certain kind of in areas where they will be getting the maximum, they can reap the maximum return from that investment. So they can be both the ways. If they can be both the ways, first, if they have surplus funds, how better to utilize that surplus funds. Or second, if they have their lack of funds, they want to borrow the funds. So what is the best way to borrow the funds? Either through the equity, preference shares, or debt. So ultimately, all that, the understanding of the corporate, the finances of that corporate is understood in this whole concept. So there are three processes involved in the corporate finance. First is the planning and controlling. Second is the allocation of the resources. Third is the control of the resources. That is, first, while if at the initial stage, we have to plan how to use that resource, how to use that sufficient, or either sufficient money, or how to raise that money. Second is the allocation of resources. For example, if you have raised the money, how to use that money, how to allocate that money, or if we have sufficient resources, if we have sufficient money, where to exactly put that money, where to exactly put that investment. Third is the control of resources. That is to measure the effectiveness, whether what we have analyzed, what we have predicted, whether we are able to generate that investment out of it, or whether, for example, in the opposite point of view, whether the investment that we have undertaken by raising the loan, whether it is all functioning well or not. So this all comes under the corporate finance background. So corporate finance का जो objective है, जो question जो हम arise करता है जो corporate finance के अंदर, is what long term investment should the firm take on, where will we get the long term financing to pay for that investment, how we will manage the everyday financial activities of the firm. So basically corporate finance के अंदर ये three objectives हैं जो कहीं ना कहीं हम understand करते हैं corporate finance के अंदर. अब the question that arises is कि जो अगर हम कहीं ना कहीं हम जब या तो हमें लोन लेना होता है to purchase new machinery, तो हम क्या क्या कंसिडर करते हैं वो लोन लेने के लिए. सो बेसिकली जो हम अंडरस्टैंड करते हैं, वी अंडरस्टैंड इट थ्रू टू प्रोसेसेस. फर्स्ट द रिस्क एंड रिटर्न. What exactly is the risk and return? So it is a very easy concept. The higher the risk, the more the return. And the second, the most important is the time value of money. जो इसका कॉर्पोरेट फाइनेंस का सबसे मेजर जो बेस है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है. जो रिस्क एंड रिटर्न कहीं ना कहीं मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि अगर वो लोन लेगा तो वो लोन को रीपे करने के लिए will they be easily able to generate that much revenue to repay that loan plus the principal plus the interest. So that determines the risk and return that the management has to decide while making a new investment. Second is the time value of money that we will be understanding in the next slides.
So what I've already told you the concept of the risk and return. The next is the time value of money. So before understanding the time value of money, what we will be understanding is the cost of capital. अब जैसे what we have understood till now, if for example if I want to purchase new plant and machinery, or if I want to undertake new investment, a big investment, so I have three options: either to go for the equity, either to go for preference or a debt. Each and every way, if I will go for equity or preference or a debt, there is a cost involved in it. For example, in the case of debt, we have to pay the basically the principal plus the interest part. In the case of preference, we have to pay the preference dividend. In the case of equity, we have to pay the equity dividend to the shareholders, because somehow if a person is investing into a company, he will be expecting something in return in the form of dividend. So if a company wants to make a new investment and they want funds to basically make a new investment, so what are the ways? First, the equity, preference, and the debt. Each and every way has cost involved in it. So in the case of debt, as I've told you, the interest rate is involved. The interest rate, basically the interest have to be made plus the principal. That is called as KD. KD is the cost of debt. But because debt, in the case of debt, we get the advantage of interest is a tax. Basically, जो tax का advantage मिल जाता है हमें interest के अंदर. So cost of capital in the case of debt हम जो ये लेते हैं, that is KD 1 minus tax. बिकॉज जो हम इंटरेस्ट का जो होता है, इंटरेस्ट इज हम कहने की टैक्स उसमें डिडक्ट हो जाता है. इस वजह से जो हम कॉस्ट ऑफ डेट की बात करते हैं तो वी यूज KD 1 minus T. इन द केस ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड KPS इज बेसिकली जो प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना है. KE बेसिकली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करना है. सो दिस इज बेसिकली द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड while raising the funds, either through the debt that we understood the cost is the KD 1 minus T. In the case of preference, that is KPS. In the case of equity, it is KE. So जो हम corporate finance का जो हम decision लेते हैं, तो हम इसमें as this is in the perspective of the balance sheet, हम हमारे फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई फिक्स्ड एसेट्स को परचेज करना है, तो फर्स्ट जो हमें परचेज करना है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो हमें अल्टीमेटली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमें किस प्रोजेक्ट में कंसिडर करनी है. व्हाट विल बी द बेस्ट रिस्क दैट वी हैव टू टेक टू गेट द बेस्ट रिटर्न आउट ऑफ इट. तो कौन सी टैंजिबल और इनटैंजिबल एसेट्स को हमें प्रोक्योर करना है टू गेट द बेस्ट रिटर्न. सो फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज व्हाट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड द फर्म चूज. नेक्स्ट द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि वो जो हमने परचेज करना है एसेट्स, वो हमें परचेज करना कहां से है. हाउ कैन द फर्म रेज द मनी फॉर द रिक्वायर्ड फंड्स, आइदर थ्रू द करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर इक्विटी. अल्टीमेटली कहां से वो परचेज, हम इन्वेस्टमेंट परचेज करना चाहते हैं, वो हम फंड्स कहां से यूटिलाइज करें. एंड इन द केस ऑफ शॉर्ट टर्म अगर हम बात करें, हमारी करंट एसेट्स को हम पूरा जो करंट लायबिलिटीज है और करंट एसेट्स हम कहीं ना कहीं इजीली मीट आउट कर पा रहे हैं. सो हाउ मच शॉर्ट टर्म कैश डज अ कंपनी नीड्स टू पे इट्स बिल्स. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज इन्वॉल्वड इन द कॉर्पोरेट फाइनेंस डिसीजन that is understood through the like a perspective of from the balance sheet. So जैसे अभी हमने जो अंडरस्टैंड किया कि अल्टीमेटली हमारी जो कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, चाहे हम वो डेट से लें, प्रेफरेंस शेयर से लें या इक्विटी से लें, तो अब हम जो कैलकुलेट करते हैं, जो हम कहने की अपनी कैश फ्लोज या कैश इनफ्लो आउटफ्लो या इनफ्लो को हम कहने की कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेते हैं हम उसको वेटेड एवरेज करते हैं. वी हैव टू डू द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड. सो वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ कि हमारे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट है, उसके अंदर 1000 करोड़ का उनको न्यू कैपिटल रेज करना है. तो उन्होंने क्या किया, 1000 करोड़ का न्यू कैपिटल इनको रेज करना है. तो 50 फॉर एग्जांपल 500 करोड़ का उन्होंने इक्विटी रेज किया, 250 करोड़ का प्रेफरेंस शेयर रेज किया एंड 250 करोड़ का न्यू डेट रेज किया. तो अल्टीमेटली जो वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जांपल डेट का वेट कितना हुआ, 250 डिवाइड बाय 1000. दैट मींस 25% वेट हुआ डेट का, 25% वेट हुआ प्रेफरेंस शेयर्स का एंड 50% वेट हुआ इक्विटी का. इनटू वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द कॉस्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड. डेट के केस में जैसे हमारी इंटरेस्ट इज द कॉस्ट, तो हमें इंटरेस्ट मल्टीप्लाई करना है. प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर हमें कितना, हमने लाइक 9% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो कितना उसके अंदर हमारी वो कॉस्ट इन्वॉल्व है, प्लस
हमारे डिविडेंड जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को कहने की दे व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग. दिस इज ऑफ कैलकुलेटिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. हमें इंडिविजुअल नहीं, हमें सबका हमें वेटेड एवरेज लेना होता है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अभी रिसेंटली टू गिव यू प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ इट, रिसेंटली जब रिलायंस की अभी एजीएम हुई थी तो जो बेसिकली मुकेश अंबानी स्पेसिफिकली टोल्ड कि उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट हैज डिक्रीज्ड. एंड इन द लास्ट सेशन एज वेल हमने ये चीज अंडरस्टैंड करी थी कि अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ दैट कंपनी इंक्रीजेस. Therefore, what each and every corporate wants, the cost of capital should decrease. So, what exactly is the way to calculate the cost of capital? It is the way that what we have just understood. That is weight of the debt into the cost of debt plus weight of the preference into the preference shares, cost of preference plus weight of the equity into the dividend. So this is basically the weighted average cost of capital. Now we will understand the next important concept of capital asset pricing model. This is the most important concept, that is CAPM. It follows the model of equity shareholders. What exactly equity shareholders को क्या return चाहिए? Ultimately जो equity जो हम इसकी बात करते हैं KCE, जो equity share हमने इससे बात करी, debt की तो easily निकल गई interest payment पे. KPS की बात होगी तो मतलब हमने कितना % का हमने issue किया है preference shares. Now the concept that arises is KCE कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो कितना डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना उन्होंने जो कैपिटल जो हमारे कंपनी में डाली है वो अल्टीमेटली हाउ मच डिविडेंड दे आर एक्सपेक्टिंग और हाउ मच रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग. वी हैव टू कैलकुलेट इट थ्रू CAPM मॉडल. KE, द फॉर्मूला इज K is equal to RF plus beta into RM minus RF. That is, cost of equity is equal to risk-free return plus beta into risk, basically the risk from the market minus the risk-free return. The return from the market minus the return from the risk-free return. Risk-free return, जैसे in the case of India, हम क्या consider करते हैं, जो risk-free return है, that is the government securities. Government securities से जो return मिल रहा है, that is the risk-free return. Into the beta is basically, the beta coefficient is basically the sensitivity of the company. कि मार्केट में फॉर एग्जांपल 2% इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट है मेरी कॉर्पोरेट, मेरी कंपनी के अंदर. फॉर एग्जांपल मैं ऐसी कॉर्पोरेट हूँ जिसका मेरा कोई इम्पैक्ट ही नहीं है, मार्केट गिर जाए, मैं FMCG गुड हूँ, FMCG कंपनी हूँ, तो मुझे तो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता क्योंकि मेरी कॉर्पोरेट तो चलती रहेगी, बी इट इकोनॉमी रिसेशन में आए या इकोनॉमी बूस्ट हो, मेरी जो कंपनी है वो कहने की चलती रहेगी. तो बीटा अल्टीमेटली डिफाइन करता है सेंसिटिविटी ऑफ द कंपनी इन रिलेशन टू द होल मार्केट. into the risk, basically the return from the market, average return कितना market से मिल रहा है minus the risk-free return. This is how we calculated the cost of equity of that company. ये हम calculate करते हैं, उसके बाद हम इस formula में add करेंगे तो हम we get to know basically the weighted average cost of capital. I believe the concept is clear कि weighted average cost of capital कैसे निकलता है. So the question arises कि बीटा कैलकुलेट कैसे करते हैं. So there are very different ways of calculating the beta, but सबसे क्योंकि हम कहीं ना कहीं द बीटा जो वैल्यू है बहुत इजीली आपको गूगल पे भी बहुत इजीली मिल जाती है, कोई भी आपको बीटा निकालने की. बेसिकली क्या होता है, बीटा निकालते कैसे हैं, ये पास्ट जो ट्रेंड होता है, ट्रेंड एनालिसिस करना होता है. ये बेसिकली ये कहने की ट्रेंड एनालिसिस करना होता है कि पहले मार्केट में जो फ्लक्चुएशन आया उसका क्या फ्लक्चुएशन था मेरी कंपनी की प्राइसिंग के अंदर, मेरा जो मार्केट प्राइस था उसका क्या इम्पैक्ट था विद द चेंज इन द होल सेंसेक्स और निफ्टी में जो फ्लक्चुएट हुआ और मेरी जो प्राइसिंग, मेरी जो मार्केट प्राइस, मेरी कंपनी का जो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट हुआ उसका रिग्रेशन मॉडल बनता है एंड उससे हम बीटा निकालते हैं. तो बीटा का जो फॉर्मूला होता है इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला बट इट इज इजीली अवेलेबल ऑन द गूगल. आप किसी की भी बीटा सर्च करना चाहते हो तो इजीली मिल जाता है एंड इट इज अ वेरी, क्योंकि रिग्रेशन निकालना पड़ता है, इसमें हमें कंपैरिजन करना पड़ता है with the market, जो basically market that means nifty या sensex का fluctuation with the companies का pricing का fluctuation, that defines कि beta कितना है, that defines the sensitivity of the company.
द क्वेश्चन दैट, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज हुआ है कि राहुल जी ने पूछा है, तो हाउ टू एनालाइज, हाउ टू बेसिकली कैलकुलेट द अनलिस्टेड कंपनी का बीटा कैसे एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मार्केट का तो इजीली हम एनालाइज कर सकते हैं, हम अनलिस्टेड का कैसे एनालाइज कर सकते हैं। तो मैं आई जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आउट ऑफ इट। अनलिस्टेड का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम जैसे फॉर एग्जांपल जो मेरा प्रोडक्ट है, मैं बात करूं, वो फॉर एग्जांपल एफएमसीजी प्रोडक्ट है, मैं एफएमसीजी का प्रोडक्ट बनाता हूं बट मेरी कंपनी लिस्टेड नहीं है, तो मैं कैसे करूंगा, अपना बीटा कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं अपना बेंचमार्क सेट करूंगा कि फॉर एग्जांपल मेरे जो मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूं वो कौन सी लिस्टेड कंपनी, कौन सा सेम प्रोडक्ट या सेम इंडस्ट्री के अंदर है। तो मैंने अंडरस्टैंड किया फॉर एग्जांपल कि डाबर जो मैं बना रहा हूँ, डाबर भी सेम ही इंडस्ट्री में, सेम प्रोडक्ट के अराउंड अप्रोक्सीमेटली सेम ही वो काम करती है, तो मैंने डाबर का बीटा ले लिया, बट डाबर का मैंने बीटा तो ले लिया, बट वो मेरा बीटा और डाबर की बीटा सेम होगा नहीं, सेम नहीं होगा। उसके अंदर मुझे कहने की लीवरेजेस, ऐसे क्योंकि डाबर का जो डेट है वो अलग है, डाबर की इक्विटी है वो अलग है, तो मुझे क्या करना पड़ता है, डाबर के जो बीटा निकालूंगा उसको मैं पहले अनलीवर्ड करूंगा, मतलब मैं उसको पहले बीटा को अनलीवर्ड करूंगा, मतलब मैं उसका डेट पोर्शन की जो फ्लक्चुएशन है वो हटा के मैं नॉर्मल पोर्शन पे आऊंगा, इनटू मैं करूंगा अपना डेट पोर्शन, तो वो मेरा लीवर्ड बीटा हो जाएगा। सो पहले मैं एक, क्योंकि कहने की मेरा अनलिस्टेड कंपनी का मैं खुद ऐसे बीटा नहीं निकाल सकता, सो आई विल बी फॉर कैलकुलेशन द बीटा वी हैव टू यूज द बीटा ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। उस लिस्टेड कंपनी का बीटा लेके हम उसको पहले अनलीवर करते हैं, अनलीवर मतलब उसका डेट पोर्शन हटाते हैं, डेट पोर्शन का जो कहने की फ्लक्चुएशन है उससे हटाते हैं, फिर उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ अपने डेट पोर्शन से, वो कहने के लीवर्ड बीटा आ जाता है मेरी कंपनी का। So this is the way how we calculate the unlisted company beta. So I believe the capital asset pricing model is clear to all. Also, how we have to calculate the cost of capital, the weighted average cost of capital. If in case anyone has any query of the topics that we have covered. So Somnath ji has asked, what is the application of cost CAPM? Basically, सीएपीएम को जो हम ये निकालेंगे, सीएपीएम से हम निकालेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिटर्न, उससे हम जो हमने यहाँ पे जो केई निकाला, गिव मी मोमेंट, जो हमने यहाँ पे जो केई निकाला वो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे, वो मेरा ये है केई यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा निकल गया केई, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेटेड एवरेज ऑफ वेट, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा वेट ऑफ द इक्विटी, प्लस मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगा मेरा प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड प्लस इनटू द वेट, और लाइकवाइज डेट, तो उससे मेरा निकल जाएगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन अराइजेस कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकाल क्यों रहे हैं, वो हम वी विल बी अंडरस्टैंडिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड इटसेल्फ। तो आई बिलीव सीएपीएम का जो मॉडल है, सीएपीएम से हम अंडरस्टैंड करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना उनको रिटर्न मिले, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके वेट से, इक्विटी की वेट से, प्लस हम प्रेफरेंस डिविडेंड इनटू प्रेफरेंस वेट, प्लस द वेट ऑफ डेट इनटू द कॉस्ट ऑफ डेट, देन वी एनालाइज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि हम ये कहने की हम कहने की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल क्यों रहे हैं। अगर हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इसलिए निकालते हैं, अगर हमें कोई कंपनी की वैल्यूएशन करनी है, अगर हमें कंपनी को हम चाहते हैं कि ये कंपनी की वैल्यू करें कि वो कंपनी की वैल्यू कितनी है। फॉर एग्जांपल हम रिलायंस की बात करें, रिलायंस की जो मार्केट प्राइस है फॉर एग्जांपल अभी 2000 चल रहा है, तो हम ये अगर हम एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, उस फर्म की वैल्यू कितनी है, तो हम कैसे करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड से निकालते हैं, डीसीएफ मेथड से उस कंपनी की वैल्यूएशन निकालते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो का अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या होता है कि जो भी मतलब कैश इनफ्लो है माइनस द कैश आउटफ्लो। कैश इनफ्लो के बहुत सारे वेज है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो सारी एक्टिविटी का हमने कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो निकाल के हमने नेट कैश, हमने कैश इनफ्लो निकाल दिया, हमने कैश फ्लोज, नेट कैश फ्लोज, कैश इनफ्लोज कैलकुलेट कर दिया। हम इसको डिवाइड करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से, उससे हमारी निकलती है कंपनी की वैल्यूएशन। सो दिस इज द वे हाउ वी द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर जब हम वैल्यूएशन का अगर हम बात करें, अगर कोई भी हमें कंपनी की वैल्यूएशन निकालनी होती है तो WACC इज द फर्स्ट
first the base of whole calculation of the valuation of any of the company. So WACC का कहने की जो फॉर्मूला होता है वो हम वेट निकाल दिया कि उस कंपनी की कॉस्ट कितनी है कैपिटल रेज करने की, और दैट कम्स अंडर द डिनोमिनेटर पार्ट. न्यूमरेटर के अंदर आता है हमारी डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. अब डिस्काउंटेड कैश फ्लोज डिस्काउंट क्यों करते हैं वो हम अंडरस्टैंड करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर. So what exactly is the time value of money in the financial decisions? Because everyone is aware of आज के जो 1 लाख रुपए हैं और 1 साल के 1 लाख रुपए में कहने कहीं आज के 1 लाख रुपए की ज्यादा वैल्यू है. The reason being because in India there is inflation involved. The value of rupee is decreasing day by day. Therefore आज के जो 100 रुपीज होंगे या आज के जो 1 लाख रुपीज होंगे और 1 साल के 1 लाख रुपीज में कहने की आज के 1 लाख रुपीज से ज्यादा वैल्यू होगी. Therefore each and every day or each and every year the value of money is decreasing because Krishan Gandhi have asked one question: if the valuation is for prospective investment, then should we consider, if the valuation is for prospective investor, then should we consider as cost of equity for. So basically Krishan Gandhi जो हमें जो भी हम वैल्यूएशन करते हैं उसमें हमेशा वेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आता है. कभी भी ये नहीं करते कि हमने खाली केई से डिवाइड कर दिया, वो हम कभी भी नहीं करते. हमें वैल्यूएशन जो कंपनी की निकालनी है वो हमें निकालनी है एज अ वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म कि उस फर्म की वैल्यू कितनी है. इसलिए हम हमेशा एसीएफ के अंदर हमेशा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से डिवाइड करते हैं. आपकी आवाज थोड़ी ब्लर हो रही है. सर जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसमें जो इक्विटी का पोर्शन है वो इक्विटी पोर्शन हम लोग खाली प्रोस्पेक्टिव बायर का दे सकते हैं या नहीं? Krishan Gandhi, I'm not like able to hear you properly. अभी तक ठीक है? Am I audible? गुप्ता जी आपको आवाज आ रही है? आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही है. उसमें क्या आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए कृष्ण जी. थोड़ा ना या तो इको हो रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है. आवाज प्रॉब्लम आ रही है, समझ नहीं आ रहा. So in the meanwhile he is joining, so till we can discuss the next topic, that is time value of money. So जो मनी की जो वैल्यू आज जो है वो हमेशा ज्यादा होगी 1 साल के या 2 साल के वैल्यू से. So the question that arises is कि each and every जो मनी की जो वैल्यू है वो करने की एक, अगर हम कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं या हम कोई फॉर एग्जांपल कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, आज हमें कोई न्यू प्लांट एंड मशीनरी या कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है. सो व्हाट वी डू इज हमें बोथ साइड देखना पड़ता है कि हमारा कितना कैश इनफ्लो होगा और कितना कैश आउटफ्लो होगा. मेरा जो कैश आउटफ्लो है वो मेरा कैश आउटफ्लो ऑन द डे 0 हो चुका है. दैट मींस जो मुझे न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी थी, फॉर एग्जांपल मुझे 100 करोड़ की न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, वो मैंने 0 आज की डेट में मैंने कैश आउटफ्लो कर लिया. अब क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि जो मेरा कैश इनफ्लो है, कैश इनफ्लो मेरा फ्यूचर में हो रहा है, नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर मेरा कैश इनफ्लो आना है. सो हाउ वी हैव टू बेसिकली टाइमलाइन इट, क्योंकि जो मेरा कैश इनफ्लो मेरा आज के आज नहीं मिल रहा, कैश इनफ्लो मुझे वो मिल रहा है 5 साल के अंदर. तो जो 5 साल के बाद मुझे फॉर एग्जांपल 1 करोड़ मिलेगा और जो मुझे आज 1 करोड़ मिलेगा, कहने के आज 1 करोड़ की वैल्यू ज्यादा है, 5 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू कम होगी. देयरफॉर हमें हर एक जो भी मेरा कैश फ्लो होता है, चाहे वो कैश आउटफ्लो हो या कैश इनफ्लो हो, उसको मुझे कहने के डिस्काउंट करना पड़ता है. सो व्हाट इज बेसिकली द डिस्काउंटेड कैश फ्लोज. डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज बेसिकली हमें जो भी हमारे कैश फ्लोज हैं उसको हमें कहने की डिस्काउंट करना पड़ता है. डिस्काउंट हम कैसे करते हैं, हम डिवाइड करते हैं कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 + r, r raised to power 1 for the year 1, 1 + r raised to power 2 for year 2, likewise for year 3 it is raised to power 3, likewise for year 5 it is raised to power 5. सो हमें जो भी हमारे कैश फ्लोज होते हैं उसको हमें डिस्काउंट करना पड़ता है. एंड इस कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके, कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करके हमने आज की डेट का मेरा कैश इनफ्लो निकाल दिया. उसको हम कंपेयर करते हैं मेरे कैश आउटफ्लो से. कैश आउटफ्लो क्योंकि जनरली क्या होता है फर्स्ट डे पे हो जाता है, मेरी जो न्यू इन्वेस्टमेंट है वो मेरी फर्स्ट डे पे ही हो गई, तो वो मैं इसको कंपेयर करता हूँ कैश इनफ्लो डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो को डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो से. एंड अगर वो मेरा पॉजिटिव आता है तो आई टेक दैट फाइनेंशियल डिसीजन. This we will be understanding more or less in the next topic, it's next slide itself.
सो नेट प्रेजेंट वैल्यू, व्हाट एग्जैक्टली इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो अभी हमने अंडरस्टैंड किया। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू इज जो भी मेरे कैश इनफ्लोज है उसको मैंने डिस्काउंट किया, जो भी मेरे कैश आउटफ्लोज है उसको मैंने डिस्काउंट किया, एंड जो रिजल्ट आया that is my net present value. If my net present value is positive, that means I can take that financial decision. If it is negative, that means वो मेरा जो financial decision है वो मेरा fruitful नहीं होगा। For example, मैं example से समझाते हैं कि आज मुझे 1 करोड़ की न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है, मेरा न्यू प्लांट एंड मशीनरी लैंड बिल्डिंग परचेज किया, मैंने उसको 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर ली, वो मेरा कैश आउटफ्लो हो गया एट ईयर 0। अब मुझे क्या करना है, मैंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे 50 लाख रुपीज मुझे ईच एंड एवरी ईयर मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट 3 years फॉर मेकिंग दैट इन्वेस्टमेंट जो मैंने आज 1 करोड़ करी है। तो मैं अगर मैं बोलूं तो मैंने ये बोलूं कि मुझे 3 साल 50 लाख मुझे ईच एंड एवरी ईयर मिलेंगे जो मैंने आज 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी है। अगर मैं कंपेयर करूं, मैं 1.5 करोड़ मतलब 50 लाख इंटू 3 जो मुझे 3 साल में मिलने हैं, 50 लाख इंटू 3 दैट मींस 1.5 करोड़ माइनस द 1 करोड़ इज इक्वल टू 50 लाख। अल्टीमेटली मैं बोलूं कि मुझे मेरा फाइनेंशियल डिसीजन ये है कि मुझे अल्टीमेटली नेट एंड ऑल मुझे 50 लाख का बेनिफिट मिल रहा है। ये डिसीजन मेरा गलत होगा। रीजन बीइंग, मुझे जो 50 लाख मिल रहे हैं वो आज के आज नहीं मिल रहे, मुझे वो फर्स्ट ईयर में मिल रहे हैं, सेकेंड ईयर में मिल रहे हैं, थर्ड ईयर में मिल रहे हैं। बट जो मेरा कैश आउटफ्लो है वो मेरा ईयर 0 में हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, 50 लाख जो मुझे ईयर 1 में मिल रहे हैं उसको मैं डिस्काउंट करता हूँ, 50 लाख इन ईयर 2 में उसको भी डिस्काउंट करता हूँ, 50 लाख इन ईयर 3 उसको भी डिस्काउंट करता हूँ। उसके बाद मैं कंपेयर करता हूँ मेरा कैश आउटफ्लो से, देन मैं डिसाइड करता हूँ कि वो मेरा डिसीजन सही है या नहीं है। सो द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि मैंने डिस्काउंट अल्टीमेटली जो भी हम अंडरटेक करते हैं कैपिटल फाइनेंस का डिसीजन, वो हम अंडरटेक करते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज एंड इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज से, rather than just including the cash inflows and cash outflows. We have to discount it to make sure the time value of money is accounted for in making that financial decision. So I believe the net present value, the concept is clear कि exactly concept क्या है। So concept जो therefore higher the NPV the better it is, क्योंकि discounted cash, the discounted cash inflow minus the discounted cash outflow, जितना ज्यादा हो उतना अच्छा मेरा financial decision है। Likewise, in the case of internal rate of return, what exactly is the internal rate of return? Internal rate of return वो return है जब मेरा cash discounted cash inflow and discounted cash outflow is same। जब मेरा दोनों इक्वल हो जाएंगे, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो जिस रेट ऑफ रिटर्न पे होंगे वो मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। क्वेश्चन ये राइज होता है, अगर मेरा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो बेटर है, कम है तो फिर कहने की लॉस है। अब द नेक्स्ट जो क्वेश्चन राइज होता है जो मैं डिस्काउंट करता हूँ, आई विल गो बैक इन द प्रीवियस स्लाइड, कि व्हाट अगर जो नेक्स्ट हमने ये तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया कैश फ्लो क्या होता है, हमने जो कैश फ्लो हमने कैश इनफ्लो ले लिया, कैश आउटफ्लो ले लिया। अब जो क्वेश्चन राइज होता है ये रेट जो आर हम जो डिनोमिनेटर में ले रहे हैं, ये हम आर क्या ले रहे हैं, ये बेसिकली आर क्या होता है, आर इज बेसिकली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हमें उस पैसे की मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, उस पैसे का मैं क्या बेटर यूटिलाइज कर सकता था, मैंने वो बेटर यूटिलाइज करके मैं कितना रिटर्न लेके आ सकता था, वो मेरा आर होता है। तो आर कैन बी वेरी लाइक बहुत डिफरेंट आर हो सकते हैं, हर एक का अलग अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव है आर का। आर कैन बी फॉर एग्जांपल मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो उससे मुझे कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सफिशिएंट फंड्स हैं, उससे मैं कहीं ना कहीं एफडी में लगाता तो मुझे फॉर एग्जांपल 7% रिटर्न मिलता, तो मेरा आर क्या है 7%, R will be 7%। That means मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उस फंड्स की क्या है। अब मेरे पास सफिशिएंट फंड्स नहीं है, मुझे अल्टीमेटली बोरो करना पड़ रहा है, तो जो मैं बोरो किस रेट पे कर रहा हूँ दैट विल बी R, कि अल्टीमेटली मेरे जो बर्डन है वो कितना आ रहा है R। अल्टीमेटली क्या होगा, जो उस मेरे चाहे वो मेरे दोनों पर्सपेक्टिव है, अगर मेरे पास सफिशिएंट फंड्स हैं तो मैं उस सफिशिएंट फंड्स का मैं कहाँ बेटर यूटिलाइज कर सकता था, मेरे पास उतना कितना रिटर्न आता है उससे, दैट कैन बी R। और इफ इन केस आई डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स, इफ आई वांट टू बोरो इट, तो जब मैं बोरो कर रहा हूं तो वो मेरा किस रेट पे बोरो हो रहा है, दैट विल बी आर। सो आर कैन बी फ्रॉम द बोथ पर्सपेक्टिव, क्योंकि ईच एंड एवरी कंपनी का आर अलग अलग होगा, वो डिसाइड करने के लिए तभी वो उसके डिस्काउंटेड कैश फ्लोस तभी उसके हिसाब से काउंट होते हैं। आज हम जब बात करते हैं एक वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी निकालने के लिए, जो हम एक कंपनी की जब वैल्यूएशन निकालते हैं, जो हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला था,
तो हमें उसके जो डिस्काउंट करने पड़ते हैं कैश फ्लोज, वो हम डिस्काउंट करते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। हम डिफाइन करते हैं कि उसको तभी हम रादर देन इक्विटी प्रेफरेंस या डेट, हम इसका हम सबका वेट लेते हैं एंड हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। एंड अगर हम वैल्यूएशन निकालते हैं तो आर जो हम लेते हैं वो आर हम लेते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो एक अभी क्वेश्चन जो आया था, I'll ask answer it in how to arrive at years to be considered for DC, basically cash inflow more than years considered more than, this is a very important prospect कि हम years कितने ले, क्योंकि जैसे अगर हम कोई कैपिटल कोई डिसीजन ले रहे हैं, अगर हमने कोई कैपिटल डिसीजन लिया, देख ये बहुत पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई कैपिटल डिसीजन लेना है, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये मैं आज ही इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो इससे मुझे 5 साल का रिटर्न आएगा, इससे मुझे 7 साल का रिटर्न आएगा, या इससे मुझे इवन मतलब इससे मुझे इन्फिनिटी टाइम्स ऑफ ईयर के अंदर भी रिटर्न आ सकता है। दे कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज। अगर मैं न्यू कहने के इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो दे कैन बी मेनी पॉसिबिलिटीज कि मैं वो टाइम होराइजन को डिसाइड करता हूँ कि मुझे कितने टाइम में रिटर्न आना है। अगर मेरा डिसाइडेड है कि मुझे 3 इयर्स में रिटर्न आना है, 5 इयर्स में रिटर्न आना है, 7 इयर्स में रिटर्न आ रहा है, तो मैं उतने साल का ही कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो डिस्काउंट करता हूँ। बट द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज इफ आई वांट टू वैल्यू अ कंपनी, तो वो कंपनी हम ये फर्स्ट मान के चलते हैं कि वो उस कंपनी की कहीं ना कहीं इट विल फंक्शन परपेचुइटी के लिए फंक्शन करेगा, कि इट विल नेवर फॉल डाउन, वो हमेशा ईयर एंड ईयर चलते ही रहेगा। तो उसकी जो हम कहने की जो कैलकुलेशन करते हैं वो कैश फ्लो हम कहने की प्रिडिक्ट, क्योंकि हम ये कैश फ्लो जनरली प्रिडिक्शन, हम आज की डेट में हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें 1 साल के बाद 1 करोड़ पैसे मिलेंगे, 2 साल के बाद 5 करोड़ मिलेंगे। दिस इज ऑल प्रोजेक्शन कब किसको पता कब कितनी फ्लक्चुएट होगी, क्योंकि हमें किसी को नहीं पता कि फ्यूचर कितना अनसर्टेन है, और हम इतनी टेक्नोलॉजी ड्रिवन एनवायरनमेंट के अंदर है, तो नो वन नोस कि कैश फ्लो कितना अल्टीमेटली आएगा, बट वी हैव टू प्रिडिक्ट एट डे 0 कि कितना कैश फ्लो आएगा। सो द क्वेश्चन दैट अराइजेस इज कि जो वैल्यूएशन अगर हम कोई कंपनी या फर्म की करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम ये डिसाइड करते हैं कि हम कब तक कितने साल तक उसकी हम कैश फ्लो है हम एग्जैक्टली मतलब हम जो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है हम 100% प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि हाँ इसका कैश फ्लो इतना ही होगा, क्योंकि 100% तो कोई कर ही नहीं सकता। तो हम कहने के हम ये बस ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमें लगता है कि ये 99% इतना ही कैश फ्लो जनरेट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एफएमसीजी की कंपनी हूँ, तो मैंने एनालाइज कर लिया कि नेक्स्ट 5 इयर्स तो मुझे पता है कि मेरा इतना ही कैश फ्लो जनरेशन होनी है, उसके बाद पता नहीं कितना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, वो परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा देता हूँ कि कैश फ्लो डिवाइड बाय 1 माइनस के, वो मैंने परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा दिया कि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया कि मुझे मेरा इतनी ही लाइक अराउंड 4 to 5% की ग्रोथ होगी, तो उस हिसाब से मैं एक परपेचुइटी का फॉर्मूला लगा के मैं वैल्यूएशन ऑफ अ कंपनी कर देता हूँ। अगर हम कोई कैपिटल बजटिंग का डिसीजन ले रहे हैं, उसमें हमारे पास हमेशा पता होता है कि कितना ईयर्स है हमारे पास। अगर हम वैल्यूएशन ऑफ अ फर्म कर रहे हैं, उसमें हम कोई टाइम होराइजन डिसाइड नहीं कर सकते, उसके अंदर तो हम परपेचुइटी तक लेके चलते हैं उस फर्म की वैल्यू। बट इफ इन केस वी आर मेकिंग अ फाइनेंशियल डिसीजन, वी हैव टू एनालाइज कि कितने साल तक की वो हमारी न्यू इन्वेस्टमेंट है, तो कितने साल तक वो चलेगी न्यू इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कहने की इन्वेस्टमेंट भी डिप्रिशिएट होती है, उसके बाद हमें न्यू अदर खर्चे करने पड़ेंगे, और कहने की टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो मुझे न्यू इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो देयर आर मेनी वेज और देयर आर मेनी डिफरेंट वेज कि वो हम कहीं ना कहीं जो डिसाइडिंग फैक्टर्स होते हैं फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए। So the question I've received is how to determine the growth rate. जो growth rate है ये एक बहुत different perspective है, हर एक इन्वेस्टर का अलग अलग perspective होता है, तभी जो वैल्यूएशन होती है। अगर जो हम अपनी स्टॉक मार्केट की बात करें निफ्टी की, तो रिलायंस के शेयर की बात करें तो हमारी जो मार्केट है देख दैट इज एन इनएफिशिएंट मार्केट, कि जो उसका हम जो कहने की वैल्यूएशन कर रहे हैं और जो उसकी अभी करंट वैल्यूएशन है वो कहने की डिफरेंट है, तभी वो अदरवाइज तो कहने की डिमांड सप्लाई नहीं होगी। अगर हम सोचते हैं कि एक रिलायंस की वैल्यू 2019 और 2000 है, तो वो हमेशा कहने की डिमांड सप्लाई का कभी फंक्शन ही नहीं आएगा। हम चाहते हैं कि वो अगर हम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं कि उसकी वैल्यू दे कैन बी टू इन्वेस्टर्स, वो एक इन्वेस्टर सोचता है कि उसकी वैल्यू 2500 होनी चाहिए, कोई सोचता है 1500 होनी चाहिए, तो 1500 वाला सेल करता है, 2500 वाला खरीदता है। तो कहने के तभी इनएफिशिएंट मार्केट है हमेशा, तभी वो स्टॉक मार्केट फंक्शन करती है। तो जो चाहते हैं, जो सोचता है जिसकी 2500 वैल्यू होना चाहिए उसका ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा सोचता है, जिसकी 1500 जो सोचता है कि उसकी 1500 वैल्यू होना चाहिए वो बहुत कम ग्रोथ रेट सोचता है। तो हर एक पर्सन का एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव होता है ग्रोथ रेट डिफाइन करने का। So they cannot be a fixed growth rate.
ग्रोथ रेट अगर हम परपेचुइटी की बात करें तो परपेचुइटी के अंदर ग्रोथ रेट हम कंसिडर करते हैं जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट है वो हम कंसिडर करते हैं कि जीडीपी किस ग्रोथ रेट से चल रही है। बट अगर हम अपने छोटे फ्रेम के लिए डिसाइड करें कि 5 साल में डिफाइन करें तो टेक ड्रिवन कंपनीज है तो उसका ज्यादा ग्रोथ रेट रहता है। जैसे एलॉन मस्क की जो टेस्ला है उसका ग्रोथ रेट इतना हाई है कि एवरीवन इज like betting on the Elon Musk basically vision. Everyone is believing कि ये next एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी इन द फ्यूचर, बिकॉज जो उसके वो जो जिस प्रोडक्ट में वो कहने की डील कर रहा है दैट इज अ टेक ड्रिवन प्रोडक्ट्स की ईवी में एंड मास में जाना एंड स्पेस एक्स एंड देयर प्रोडक्ट इज लाइक अ टेक ड्रिवन प्रोडक्ट। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा है। सो ग्रोथ रेट हर एक कंपनी की अलग होती है, टेक की ज्यादा होगी, कोई फॉर एग्जांपल और डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कंपनीज की अलग अलग सबकी डिफरेंट ग्रोथ रेट होती है। फॉर इक्विटी शेयर वैल्यूएशन सो हमेशा WACC, राहुल जी, वी हैव टू टेक द WACC not the KE. So basically this is all what we had to discuss in the financial, basically जो corporate finance के अंदर जो हमने discuss किया, we discussed regarding the time value of money, what is the basic objective of time value of money, how the time value of money is calculated, the time value of money concept is used in making the financial decisions. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी से हमने कैसे उसका हमने जो कैश फ्लोज है जो हमने प्रिडिक्ट करे हैं उसको हम कैसे डिस्काउंट करते हैं, बिकॉज हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फैक्टर लेना पड़ता है। डिस्काउंट करने के बाद हम इसको कंपेयर करते हैं विद कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो को डिस्काउंट किया, वी देन कंपेयर्ड विद द डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो। इफ इट इज पॉजिटिव दैट मींस इफ द एनपीवी इज पॉजिटिव देन वी टेक दैट फाइनेंशियल डिसीजन, इफ इट इज नॉट देन वी डोंट गो फॉर द फाइनेंशियल डिसीजन। एंड जिस रेट पे हमारा जिस रेट पे नेट कैश इनफ्लो एंड नेट कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू 0, उस रेट ऑफ रिटर्न पे हम वो कंसिडर करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आर बेसिकली इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न है जहाँ पे कैश आउटफ्लो एंड कैश इनफ्लो इज द सेम, डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो एंड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि रेट ऑफ रिटर्न आर क्या होता है? आर कैन बी द आर इज एक्चुअली द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट मनी। चाहे वो हमारे पास सरप्लस फंड है तो हम वो मनी कहाँ बैठे यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम बोरो कर रहे हैं तो वो आर क्या लेंगे। अगर हम इक्विटी शेयर, हम जैसे हमने बताया इक्विटी शेयर अगर वैल्यू करनी है तो हम WACC ले लेते हैं। तो WACC का आई बिलीव द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इट इज यूज टू बेसिकली हर एक जो भी सारे हमने कॉस्ट हमने यूज करी है, चाहे कॉस्ट ऑफ डेट हो, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो या कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स हो, उसका हम कहने की वेटेड एवरेज निकालते हैं rather than just focusing on the cost of debt or cost of equity। हम सबका वेटेड एवरेज निकाल के हम कहने की एक कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं। एंड द लोअर द कॉस्ट ऑफ कैपिटल द हायर द वैल्यू ऑफ दैट फर्म। जस्ट लाइक आई gave the example of Reliance specifically mentioned that their cost of capital is decreasing because somehow हमने जैसे डिस्कस किया था कि डेट की जो कहने की जो डेट है, डेट के जो इंटरेस्ट रेट हमेशा अभी डिक्रीज हो रहा है बिकॉज आरबीआई इज टेकिंग मेजर्स टू डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल for majority of the companies are decreasing nowadays because they are easily able to basically make more loans at the lower rate of interest. So this was all that we had to cover for first the economics part and second that of the corporate finance part. थैंक यू वेरी मच श्री मानस चुग जी। आपने क्वेश्चन तो साइड बाय साइड ले ही लिए। Yes, yes. तो इट वाज अ रियली वंडरफुल सेशन एंड वी लुक फॉरवर्ड टू मोर सच सेशंस। अभी क्या है कि 20 मिनट बाकी हैं, तो अभी क्या करूंगा कि मैं कुछ बुक में से क्वेश्चंस पढ़ूंगा और सभी पार्टिसिपेंट्स जो हैं उसका आंसर करेंगे। ठीक है जी। ये प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पर भी बेस्ड होंगे और कॉर्पोरेट फाइनेंस पर भी। तो पहला क्वेश्चन ये है इसमें कि जो इंडिया की इकोनॉमी है किस टाइप की इकोनॉमी है। इसमें 4 आंसर हैं, अंडर डेवलप्ड है, डेवलप्ड है या डेवलपिंग है, क्या है? डेवलपिंग, ठीक है, गुड। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ये तो हमें मालूम ही है कि इट इज ए मॉनेटरी मेजर। ठीक है, ये भी हमें मालूम है कि मार्केट वैल्यू इसमें आती है। ठीक है, और सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज की आती है। लेकिन मतलब क्या वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में होती है? क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और वो गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या है?
But we all know that gross domestic product is a monetary measure. We also know that it is market value of all final goods and services produced. जनरली यही है. ठीक है, मानस जी भी हमारे बीच में बैठे. ठीक है जी. अच्छा, क्या क्या डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं? प्रोडक्शन अप्रोच है, एक्सपेंडिचर अप्रोच है, इनकम अप्रोच है. ये तीनों ही कर सकते हैं या कोई इसमें से ऐसी है जो नहीं यूज कर सकते जीडीपी निकालने के लिए? ठीक है. जीडीपी निकालते टाइम हम कुछ फैक्टर्स को एक्सक्लूड करते हैं. वो क्या क्या फैक्टर्स हैं वो आपको लिखना पड़ेगा. ट्रांसफर पेमेंट्स को हम एक्सक्लूड करते हैं या नहीं करते? अगर एक्सक्लूड करते हैं तो यस लिखिए. जीडीपी जब हम निकालते हैं तो कुछ फैक्टर्स को एक्सक्लूड करते हैं. तो ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं या नहीं करते? कुछ बोल रहे हैं यस, कुछ बोल रहे हैं नो. तो मेरे हिसाब से तो करते हैं जी एक्सक्लूड. और ट्रांसफर पेमेंट्स होती क्या है पहले ये भी बताइए. लिखिए क्या होती है ट्रांसफर पेमेंट्स. मानस जी आप बोलिए इस पर कुछ. ट्रांसफर पेमेंट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. मेरे को लगता है ये पॉइंट छूट गया है इसमें. आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को. मैं ये स्लाइड से समझाऊंगा कि मेरे स्लाइड्स में है ये वाला क्वेश्चन. हाँ जी, हाँ जी. मैंने थोड़ा लाइक ब्रीफ नहीं किया मैंने. मैं ये दोबारा समझा लेता हूँ. हाँ. सो जैसे हमने अंडरस्टैंड किया था कि हम जीडीपी जो कैलकुलेट करते हैं दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू कंजम्पशन प्लस द इन्वेस्टमेंट प्लस द गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स माइनस द नेट एक्सपोर्ट्स. दिस इज द वे वी कैलकुलेट द जीडीपी. नाउ द क्वेश्चन दैट राइजेस इज कि कंजम्पशन क्या होता है. कंजम्पशन जैसे हमने बताया कि इंडिया एक इकोनॉमी कंजम्पशन इकोनॉमी है कि हम जो इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, दैट इज कॉल्ड द कंजम्पशन. सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट के अंदर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट्स, जो एसेट्स जो कहने की जो कॉर्पोरेट्स परचेज कर रहे हैं या जो इंडिविजुअल्स न्यू इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, दैट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट. गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स कि जो स्टेट गवर्नमेंट पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी खर्चा कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर करे, एसेंशियल कमोडिटीज में करे, तो वो हम गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स लेते हैं. इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर एक्सक्लूडेड. अभी मैं बताऊंगा ट्रांसफर पेमेंट्स एक्जैक्टली होता क्या है. नेक्स्ट इज नेट एक्सपोर्ट्स कि जितना भी हमारा एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स है वो हम लेते हैं बेसिकली नेट एक्सपोर्ट्स के अंदर, क्योंकि हमारे इकोनॉमी के अंदर कितना जनरेशन हो रहा है फॉरेन एक्सचेंज का, दैट इज कॉल्ड एज नेट एक्सपोर्ट्स. तो उसमें क्वेश्चन ये आता है कि हमें क्या क्या चीज़ें नोट स्पेसिफिकली नोट करनी है. फर्स्ट इज कि इंटरमीडिएट गुड्स, जो भी इंटरमीडिएट गुड्स है वो हमें कंसिडर करने होते नहीं कंसिडर करने होते. इट इज़ नॉट कंसिडर्ड, क्योंकि हमें हमेशा फाइनल गुड्स ही कंसिडर करने होते हैं रादर देन इंटरमीडिएट. इंटरमीडिएट करना तो हमें हर एक इंटरमीडिएट को ऐड करना पड़ेगा तब जाके हम करेंगे, रादर देन गोइंग. इससे बेटर होता है हमेशा फाइनल प्रोडक्ट को ही कंसिडर कर लिया. नेक्स्ट इज कि परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, जो हम सेकंड हैंड गुड्स परचेज कर रहे हैं वो कहने के कंसिडर होंगे. दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस मेथड, कि वो हमेशा इसके अंदर हमारी कैलकुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, बट जो ब्रोकरेज में जो खर्चा जा रहा है वो हमारे इसके अंदर इंक्लूड होता है. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन अनाइज होता है कि ट्रांसफर पेमेंट्स, कि ट्रांसफर पेमेंट्स हमारी इंक्लूड होती नहीं होती. सो आई वांट एवरीवन टू आंसर व्हाट एग्जैक्टली व्हाट इज योर बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांसफर पेमेंट्स. कि ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होते होंगे कि जो हम स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं. This is one answer, subsidies. So basically, I want everyone to participate. So उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा. So more than arm length price का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर.
तो ट्रांसफर पेमेंट्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो जो अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट कहने की पेमेंट्स दे रही है और द बेसिकली वो इंसेंटिव्स दे रही है, लाइक सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के थ्रू दे रही है, लाइक रिटायरमेंट बेनिफिट दे रही है या कोई डिसेबिलिटी का बेनिफिट दे रही है या कोई ऐसी सब्सिडीज दे रही है, दीज कम्स अंडर द ट्रांसफर पेमेंट्स कि वो ऐसी सब्सिडीज जो कहने की एक सोशल सिक्योरिटी पेमेंट हो गई। इवन द जो कहने की जो गवर्नमेंट जो ट्रांसफर पेमेंट होती है हमेशा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से ही कह ले जाती है कि जो गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है जिससे कोई कहने की वैल्यू जनरेशन हमारी इकोनॉमी के अंदर कोई वैल्यू जनरेशन नहीं हो रहा, बस इकोनॉमी के अंदर क्या हो रहा है, पैसे लोगों को मिल रहे हैं। जैसे अभी हम बोलें कि यूएस इकोनॉमी के अंदर हर एक पर्सन को जो अनएम्प्लॉयड है उनको $2000 फ्री में दिए गए। तो जो फ्री में दिए गए दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स, दैट इज नॉट एक्चुअली असिस्टेड इन द जनरेशन ऑफ द इकोनॉमी के अंदर कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ, बस क्या हुआ गवर्नमेंट के पास पैसे थे, वो पैसे कहने की एक ट्रांसफर हो गए ईच इंडिविजुअल पर्सन के पास। दीज आर कॉल्ड एज ट्रांसफर पेमेंट्स। अगर आपको ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है तो उसमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आप क्या चीज जोड़ोगे? आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो और क्या चीज चाहिए आपको? इसमें आप जोड़ोगे जी नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट और नेट नेशनल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है आपको। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या चीज जोड़ोगे? आपको जीएनपी दिया हुआ, वो कहता है जी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालो, तो आप क्या जोड़ोगे उसमें? या क्या घटाओगे? छोड़ो, क्या घटाओगे, सॉरी नेट है तो नेट में क्या घटाओगे आप? नो पूजा जी, योर आंसर इज रॉन्ग। डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब पर कैपिटा इनकम निकालनी है आपको, नेशनल इनकम दी हुई है, तो किस चीज से डिवाइड करोगे? हाँ, पॉपुलेशन, ठीक है। एक बुक थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये किसने लिखी थी? कौन से इकोनॉमिस्ट ने लिखी थी? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पेपर में। अच्छा, हाँ, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। एडम स्मिथ। ये तो ज्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन हो गया। वेलफेयर एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स किसने डील किया? देखिए 3-4 इकोनॉमिस्ट है मेजर, ठीक है, एडम स्मिथ है, अल्फ्रेड मार्शल है, लायनल रॉबिन्सन है, तो किसने डिस्कस किया? पॉल सैमुअल्सन है। तो जो वेलफेयर एस्पेक्ट था, इसमें एक्चुअली जो जितने भी इकोनॉमिस्ट थे ना, इन्होंने अलग अलग एस्पेक्ट डील किए हैं। जैसे वेलफेयर एस्पेक्ट डील करता था अल्फ्रेड मार्शल, ठीक, और सिक्योरिटी और चॉइस एस्पेक्ट ये किसने डील किया? ये डील किया लायनल रॉबिन्सन ने। और डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एस्पेक्ट किसने डील किया? पॉल सैमुअल्सन ने। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या है? व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स? तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद साइंटिफिक इश्यूज एंड क्वेश्चंस। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इट डील्स विद एथिकल इश्यूज, क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमांड में अगर नॉर्मल सिचुएशन हो, ठीक है, तो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो जो डिमांड है वो फॉल करेगी या क्या होगा, या इंक्रीज करेगी, क्या होगा? टाइम्स नॉर्मल है, ठीक है। अच्छा, 3 तरह की मोनोपोली होती है। एक तो मोनोपोली, ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट है, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है,
तो उस वैसी मार्केट को क्या कहेंगे हम? भाई कई बार तो ऐसा होता है, एक प्रोडक्ट है, उसमें कोई है ही नहीं, दूसरा प्रोडक्ट नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? जिसका क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल ही नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? मोनोपोली। ठीक है। और मार्केट स्ट्रक्चर ऐसी है जिसमें ईच सेलर प्रोड्यूसेस ए डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जो पहला वाला क्वेश्चन था। अच्छा जी, जो फंक्शनल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट की, इसको क्या कहते हैं? भाई एक तरफ इनपुट है हमारी, एक तरफ आउटपुट है, ठीक है। इनकी जो फंक्शनल रिलेशनशिप है, इसको क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, सप्लाई फंक्शन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है कि दो तरह की अप्रोचेस होती हैं, एक कार्डिनल अप्रोच होती है, एक ऑर्डिनल अप्रोच होती है। तो क्या फर्क है दोनों में? कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या फर्क है? मानव जी आप बताइए थोड़ा। डेफिनेटली। क्योंकि यूटिलिटी जो है दोनों तरह से मेजर की जा सकती है, कार्डिनल अप्रोच से भी और ऑर्डिनल अप्रोच से भी। तो मानव जी बताएंगे होता क्या है कार्डिनल अप्रोच और ऑर्डिनल अप्रोच? मैं बताता हूँ। हाँ जी। So anyone knows in the participants what is the difference? So basically ordinal utility and cardinal utility का फर्क क्या है? Ordinal utility is basically on the terms of ranking. अगर हम रैंक किसी को करना है तो हम कहीं ना कहीं करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी के अंदर। कार्डिनल यूटिलिटी के अंदर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है गिव डिफरेंट चॉइसेस टू अ स्पेसिफिक यूटिलिटी वैल्यू। तो हमें डिफरेंट चॉइसेस देने को स्पेसिफिक यूटिलिटी वैल्यू को तो हम कहते हैं कार्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होगा कि आपको रैंकिंग करने की कौन सा बेटर है, कौन सा किसको हम कितने रैंक दे सकते हैं, दैट कम्स अंडर द ऑर्डिनल यूटिलिटी वैल्यू। जैसे मतलब आपने नाइकी के शूज खरीदने हैं या एडिडास के शूज हाँ, खरीदने हैं, तो ये ऑर्डिनल अप्रोच में आएगा। और कार्डिनल में क्या आएगा? कार्डिनल का कोई एग्जांपल? कार्डिनल का एग्जांपल इट इज बेसिकली कि अगर हम बात करें कार्डिनल मेरे को लगता है जी, जैसे अगर हम क्वांटिफाई कर सकें या उस चीज को, हम क्वांटिफाई कर सकें। यस हाँ। ऑर्डिनल में जो है बेसिकली एस्थेटिक अप्रोच ज्यादा है, एस्थेटिक वैल्यू ज्यादा है उसकी। चलो जी अब चलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस पे। जैसे डीसीएफ टेक्निक हमने देखा कि डीसीएफ टेक्निक में हमने क्या करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, आईआरआर है, ठीक है। अगर पेबैक पीरियड हम मेथड अपना रहे हैं तो पेबैक पीरियड में मान लो लोअर पेबैक पीरियड आ रहा है, ठीक है। भाई दो प्रोजेक्ट है, एक में पेबैक पीरियड आ रहा है 2 इयर्स, एक में आ रहा है 5 इयर्स, तो कौन सा बेटर है? ठीक है, क्योंकि 2 साल में हमारी इन्वेस्टमेंट पूरी निकल रही है। जो हम पेबैक पीरियड जो हम कैलकुलेट करते हैं, पेबैक पीरियड के अंदर हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज यूज नहीं करते। Yes, हम हाँ, जो हम हाँ, यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं नॉर्मल कैश फ्लोज की मेरा कितने Yes, कैश फ्लोज जनरेट हुए हैं, हाँ, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। बट जो बिल्कुल। हमने एनपीवी मेथड समझा, नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसके अंदर हमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो को हमें कंपेयर करना पड़ता है। उसका जो हमने पेबैक पीरियड की बात करी, पेबैक पीरियड के अंदर हमें खाली जो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो वही कंपेयर करना यस पड़ता है। हाँ। तो अगर पेबैक पीरियड में आपसे ये पूछा जाए कि पेबैक मेथड वेदर इट इग्नोर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इट कंसिडर्स द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो कौन सा सही है? या बोथ? इग्नोर, यस।
अच्छा, ये जो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड है, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश फ्लोज। ये तो ठीक हमें मालूम ही है, ठीक है, लेकिन इसमें टैक्सेस डिडक्ट करने हैं नहीं करने हैं, ये बताइए। यस, ठीक है। एट इंटरनल रेट, देखो आपको आईआरआर दिया हुआ है, ठीक है, तो आईआरआर जब दिया हुआ है तो नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव नहीं होगा जी, जीरो होगा। हाँ, जीरो। मतलब दोनों बराबर है, आईआरआर पे और एनपीवी बराबर। क्योंकि आईआरआर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कॉन्सेप्ट है कि हाँ। जो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, जो हम कहने की जो हमारा कैश इनफ्लो है, डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो एंड डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, वो इक्वल टू जीरो है। जिस रेट ऑफ रिटर्न पे मेरा वो जीरो आएगा, दैट इज टर्म्ड एज आईआरआर। तो वो मतलब मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू अल्टीमेटली जीरो हो गया। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखे हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे? सही है। और ये जो नेट वर्किंग कैपिटल है, इसकी फाइनेंसिंग होगी कैसे? शॉर्ट टर्म से होगी, मीडियम टर्म से होगी या लॉन्ग टर्म से होगी? भाई आपने नेट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना है, ठीक है। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि भाई एसेट्स आपको ज़्यादा चाहिए, लायबिलिटीज आपकी कम है, तो आपको स्टॉक खरीदना है या कुछ करना है, कुछ जो भी करना है, तो कैसे फाइनेंसिंग होगी इसकी? शॉर्ट टर्म से होगी, लॉन्ग टर्म से होगी, मीडियम टर्म से होगी? क्योंकि आप एक बात को समझिए कि नेट वर्किंग कैपिटल एक कांस्टेंट होता है, समझ लीजिए, या बढ़ेगा वो नॉर्मली। बिजनेस बढ़ेगा तो आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि शॉर्ट टर्म से होगा, ये लॉन्ग टर्म से होना चाहिए। क्योंकि देखो, आप ऐसे जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट भी निकालते हो भाई, प्रोजेक्ट आप एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हो, उसमें क्या लिखते हो? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल लिखते हो ना। क्यों लिखते हो? वो इसीलिए लिखते हो कि वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए हर टाइम। भैया बैलेंस शीट देख लो ना, आप बैलेंस शीट देख लो, आप फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल क्या किसके बराबर होगा? आपके जो कैपिटल के बराबर ही होगा ना। हाँ, लॉन्ग टर्म ही होगा। But even as per banking norms, 25% from the long term is sufficient. नहीं, वो ठीक है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ना जी, ये भी लॉन्ग टर्म ही होता है। ये जो सीसी लिमिट है, ये भी तो एवरलास्टिंग ही होती है। Because भाई देखो, अगर आपका है, हाँ, so it's for 1 year, but it's renewed every time. यस, तो वो लॉन्ग टर्म में ही आ जाते हैं बेसिकली। अच्छा, लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल रिक्वायर्स, आपकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत बड़ी है, ठीक है। नॉर्मली तो आपको पता ही है कि ऑपरेटिंग साइकिल 1 ईयर की होती है, ठीक है। अगर आपकी लॉन्ग ऑपरेटिंग साइकिल है, तो उस केस में कैपिटल ये वर्किंग कैपिटल है, वो कम चाहिए, ज़्यादा चाहिए, कितनी चाहिए? यस, ज़्यादा चाहिए। ये मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? भाई मार्जिनल से इतना तो हमें पता ही है कि मार्जिनल जब वर्ड यूज किया जा रहा है तो समथिंग इंक्रीमेंटल है, ठीक है ना। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, दिस इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ न्यू फंड्स रेज्ड बाय द फर्म, ठीक है। आपके पास एक पर्टिकुलर 100 करोड़ है आपके पास, आपने 120 करोड़ पे जाना है, तो जो 20 करोड़ के लिए जो आपकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वही आपकी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। अच्छा, ये जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है CAPM, इसमें जो बीटा है, इट इज अ फंक्शन ऑफ बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, दोनों या कोई भी नहीं। CAPM में यस बोथ। अच्छा, ये कॉस्ट ऑफ डेट है, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स?
भाई आपको कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करनी है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? बिफोर टैक्स करोगे या आफ्टर टैक्स? ठीक है, आफ्टर टैक्स। ठीक है, मेरे ख्याल से काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है आप लोगों की, है ना जी। जहां तक लेबर लॉज और उसकी बात है, तो मेरे हिसाब से वो उसको शाम को ही कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि टाइम लगेगा उसमें, है ना जी। तो माना जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, क्या 360 डिग्री चेंज होएगा अभी। क्या? हाँ हाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ते पढ़ते पता नहीं कहाँ पहुंचे। हाँ, वही हाँ, कल कर लें, मतलब शाम को कर लेंगे उसको, वो ज्यादा सही रहेगा। यूनियंस और लेबर स्ट्राइक पे पहुंच जाएंगे। लेबर लॉ सिलेबस है, हाँ, ये सिलेबस में है जी। राहुल खंडूजा जी, क्यों नहीं है? पीपीटी मैंने पहले ही शेयर की हुई है, ये वाली पीपीटी अभी मानस जी शेयर कर देंगे, हमारे सिलेबस में है वो। सर ये लेबर लॉ, जहाँ भी चार्ट अकाउंटेंट इन्वॉल्व होते हैं, यही प्रॉब्लम है। क्या? इतना पढ़ा देते हैं कि वो मतलब जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अब आप देखिए, जहां तक इसकी बात है, तो ये कह रहा है जी राइट्स ऑफ वर्कमैन अंडर लेबर लॉज, बेसिकली ये हमारे कोर्स में है, ठीक है ना जी। तो राइट्स ऑफ वर्कमैन की जहां तक बात है ना, देखो भाई, वर्कमैन में दोनों आ जाएंगे, लेडीज भी और जेंट्स भी, ठीक है। तो अब उसमें ईएसआई भी आ जाएगा, पीएफ भी आ जाएगा, ग्रेच्युटी भी आ जाएगा, मैटरनिटी बेनिफिट भी आ जाएगा, बहुत सारे एक्ट्स उसमें आ जाएंगे, फैक्ट्री एक्ट भी आ जाएगा, ठीक है ना। बेसिकली हमें पढ़ने हैं राइट्स ऑफ वर्कमैन अंडर लेबर लॉज। खाली राइट्स वाला ही है ना वो, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट और वो तो नहीं है ना? नहीं, वो नहीं है। ओके ओके, फिर ठीक। हाँ, तो राइट्स की बात है। अब राइट्स में आपके वही कार्डिनल राइट्स भी हो सकते हैं, ऑर्डिनल राइट्स भी हो सकते हैं, पैसे की भी बात हो सकती है, बिना पैसे की भी बात हो सकती है, दोनों चीजें हैं। तो मानस जी, इट वाज रियली वंडरफुल सेशन, एंड विद दिस वी आर एंडिंग द मीटिंग नाउ विद योर परमिशन। हाँ जी, थैंक यू। सर पीपीटी शेयर करवा दीजिएगा प्लीज। डेफिनेटली। पीपीटी मानस जी अभी शेयर कर देंगे, वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर हो जाएगी। जो लेबर लॉज वाली है वो तो की हुई है हमने ऑलरेडी शेयर, उसको आप पढ़ लीजिएगा, हाँ वो पहले आई थी 2-3 दिन, है ना। हाँ, दोबारा उसको आगे कर दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, Okay, thank you. Thanks a lot. थैंक यू जी, थैंक यू जी। Thank you all.